And this session is Wheat for Peace, India's role in global food security. Wonderful moderator, Mr. Mrityunjay Kumar Jha, commodity editor, Zee Business. Are you here, Jha Sahab? Rockstar. May invite Professor Arun K. Joshi on stage, please. CIMMTY Asia Regional Representative and MD BISA International Maize and Wheat Improvement Center and Bolao Institute of South Asia. A warm welcome to you, sir. Please take your seat. Ji, thank you, sir. May invite also Miss Shweta Saini, CEO, Arcus Policy Research Private Limited. Okay, she'll join in. May invite Mr. Khalid Khan, Vice President, Procurement and Supply Chain, ITC. Welcome, Mr. Khan. ITC is represented in a big way in this entire forum. Correct, Somnath ji? It's just ITC, ITC, and ITC. But that's good. May invite Ms. Garima Jain, Deputy CEO and Head Grains LDC, India, please. She'll join in. Mr. Raju Kapoor, Director Corporate Affairs, FMC Corporation. He said he will join in 30 minutes. Mr. Jatin Singh, Chairman, SkyMet Weather Services Private Limited. That is Ms. Garima Jain. Yeah, thank you. Okay. And the superstar of the entire world of grains, Mr. Deepak Parikh, founder, HNYB Tech Incubations Private Limited. Warm welcome to you, Deepak Bhai. So I think Miss Saini was here. I met her for a short while, but now she's not in the room. So Jha Sahab, is he here? Okay. So we'll wait for some time for a moderator. Dr. Ratan Tiwari ji? Later. Okay, not there. So Ms. Saini, are you here? May I invite you, please? Ms. Shweta Saini, CEO, Arcus Policy Research Private Limited. A warm welcome to you, ma'am. Very, very interesting session and great panelists. They have got 1 hour, 30 minutes. Mr. That is Mr. Jatin Singh, Chairman, SkyMet Weather Services Private Limited. What are you going to do about the weather, Mr. Singh? It's flooded in Delhi. You're the chairman of the weather services. Okay, the monsoon is here. We're waiting for our moderator, another rock star, Mr. Mrityunjay Kumar Jha, the commodity editor of Zee Business. Very busy, just like Manisha ji, who just left for the airport. Is it raining now on the roads in Delhi? It's not raining, so I can leave tonight. Sorry? Yeah, Terminal 1 is shut, and I'm going by Terminal 1. I don't know what to do. Did you speak to him, Deepak Bhai? He's not picking the phone. Raj Kapoor Sahab, is he here? We'll wait. Okay.
In the meantime, I'll play some music, and I'm sure one of you have got some talent. So do you want to sing, dance, do a skit? What do you want to do? Deepak, क्या करेगा? गाएगा? तो मेरा माइक मत लो, वो माइक ये ले लीजिए. Deepak Parikh, also a big rock star. So today he's going to give us a love song. Give him a big round of applause. Thank you. Rami, I love you. I love you too. That is only what I can sing. But how many of you prefer wheat over rice? Can you raise your hands? Yeah. Wheat over rice, me. Okay. Wheat over millets? Wheat always. No, that's why I'm phrasing it wheat over. No. As we are waiting for Mr. Jha, I thought, why to keep audience waiting? So we all know that, wheat is a very critical commodity, especially, when we are talking about the northern part of India, northern and central India, we are we love our wheat, right? We always have preference for chapati than the bhat, right? That's typically how it is. But we have seen that over past couple of years, there have been challenge while we were actually producing sufficient amount of wheat. But now we are seeing past 3 years because of weather, right? Don't blame anyone except weather, right? We are having a little bit dip in our productivity. And that has been one of the challenge, right, for the policy makers, for the trade industry, and everybody who is involved in processing wheat. Going forward, I believe, we are having such an awesome panel here, people from very diverse interest. Jatin definitely, he can ensure that, will tell us, right, whether we'll have sufficient moisture for our Ravi crop to be successful or not, right? We have Mr. Khalid, I love to call him Khalid Bhai. He's a good dear friend, right? He'll talk about how the domestic traders they are looking at the markets and how they see going forward the availability of the wheat for sure. Deepak Bhai, in the meantime, we've got a presentation. You can ask one question, then we'll do the presentation of Dr. No, I'm done with the question. So that's yeah, please. How do we punish Mr. Jha? No, we cannot. He's media. Okay. Never punish politicians and media people. Yeah, we got a presentation. You can see it on these screens down, the panel, and the others can see it on the main screen. Thank you. Professor Arun Joshi is please. On stage. Thank you. Good morning, good afternoon, namaste, my dear esteemed colleagues, panelists. I am Arun Joshi. I am from CIMIT. CIMIT is an acronym for Spanish, something in Spanish, which is Centro Internacional Mejoramiento Maize y Trigo. It means International Center for Maize and Wheat Research. It is based in Mexico, but we work in 88 countries. So we work in 88 countries, and we are basically a research organization, and we are the seat of Green Revolution. And CIMIT got the first Nobel Prize in Agriculture, of course, for peace by Dr. Norman E. Borlaug. In addition to that, I also represent Borlaug Institute for South Asia, which was created in 2011 by Government of India for South Asia to address special issues of South Asia, not only India. And about today's presentation, actually, we decided that there will not be any presentation. So I thought to carry very few slides, maybe 8 slides, 9 slides, to give you a general picture.
Because you will see that there were 9 panelists and now suddenly, I mean, this is reverse. Population generally increases, but we are decreasing. But don't worry. I will tell you a couple of highlights, which you know already. But if you know, I would like to refresh you. So global wheat production trends and challenges. This is a very, very complicated subject. It's not easy. It's not only about research, not only about development, also about politics. So one of my friends say wheat is 80% politics. Yes, it is. So let me change the slide. The global trends in wheat production, consumption, and trade. I'm sure you are available. This is global data. Taken, yes, welcome. As we welcome, sorry sir, just we'll welcome Yes. Mr. Mrityunjay Jha. Yes. Give him a big round of applause. He's the moderator. Yeah. Thank you. Welcome. See, this is what we see in wheat, sudden jerk, climate change. Yeah, it happens, We think, something else will happen, then again you are back on track. So if you see this, you will see that area is not increasing. Area will never increase. Impossible. So you can see 60 to 2020, area increased initially, then it started going down, although in some countries like India, it little bit increased in 20 years. But if you see production, if you see productivity, if you see export, it is increasing. Because population is growing, food demand is changing, and many countries like Bangladesh, their policymakers say that our kids don't want to eat rice alone. So they want to diversify. That's why wheat is important. Now the question here will be how we will increase this production or productivity or manage export when area is not increasing. So where is this production coming from? If you see the whole world, you will find that about 80%, 78% is coming from Asia and Europe. And luckily, Asia, there are 2 countries, China and India. Together they are close to, not close to, yes, approaching 3 billion, 1.4 something. So that's why there is a little bit balance. And if you see where is the wheat stock in the world, if you see the buffer stock, try to search, you will find that 80% of buffer stock is present in China and India. All food stocks, wheat, rice, even soybean, you will find in China and India. Food security is so much important. You are saying ships cannot move. You cannot transport tomorrow. You are not sure. You are shipping from here to some other country through a particular route, and your ship will reach in 3 days. Today morning there was a rainfall in Delhi, and many of my friends missed flight, not because of T1, Terminal 1, because of the delay. So nothing is very sure, but other countries contribute about 22%. Now see this, I think Jha Sahab is here, so I have to close. So the International Wheat Yield Partnership informed us long back what will happen next 30, 40 years. And you all know about it. And we all believe that by 2050, we need 60% more wheat. You can promote millets, you can promote rice, you can promote pulses, you promote anything, but wheat is a magical crop. The gluten inside. You can prepare hundreds and thousands of preparation. Yes, hundreds and thousands. Durum wheat, estimum wheat, this wheat, that wheat, all cookies. Go anywhere in the world, any market in the world for breakfast, and show me what you are eating. Whether it is Afghanistan, whether it is Pakistan, or go to Ethiopia, or you go to Europe, or you go to Latin America, or you go to a small outlet outside Delhi for breakfast. What you will get there? What you will get? You will get samosa, you will get cookies, you will get bun, you will get bread, you may get chapati, you may get puri, you may get anything. It's wheat. And that's why some breeders of other crops like rice are thinking to make rice gluten rich. Oh my God.
Some people say gluten is very bad for health. Wheat should be gluten-free. Rice breeders are working on gluten plus rice. Amazing. So you can see the communication gap. It is not correct that gluten will create any problem. It's wonder of the world. That's why our ancient, historical people, many people said that understanding wheat is very, very difficult. You cannot understand. Yes, I'm closing. Sorry, I was not told about the time. I was told you fill the time. I can finish. No, don't worry. Don't worry, it happens, I thought I'm filling the time, because He's come, moderator again. oh, no problem. So anyway, so results shows that yield will go. Moderator has come. See, climate change has, see. So yield will go down. Some people say yield will go down. Some will say, no, it will not go down. Why it will not go down? It will go down, temperature is increasing, water is not there, fertilizer is a problem, but other scientists say, no, carbon dioxide is increasing. So you do photosynthesis from where? From carbon dioxide. See this yellow? Increasing because of carbon dioxide. Is it increasing? So no problem. So these are conflicts there, and that's why many people say India will not suffer. Private sector is saying India is low production. Government is saying, no. Where is the wheat then? So crop yield may drop in Africa and Latin America. You can see problem there because there are lots of problems. So will global area will increase? It may increase in Russia, Europe, but it will bring in challenges. If there are problems, there are solutions. It's not easy to grow wheat where you can see snowfall all the time, Russia. It will not increase so easily. Below the snow, hundreds and thousands and thousands and thousands of animals are lying there, dead, fossilized. The moment snow will melt, new insects will come, new problems will come. How you will manage? It's not so easy. So tomorrow's breeding will also change. Everything will be outsourced. Everything is outsourced. Breeding will be outsourced. Agronomy will be outsourced. There is service company like Uber, service company like, different companies are there. They will come, hello sir, I am coming. I may open a company tomorrow for you. So anything can happen, but the demand is, let us increase wheat production. It is necessary. Without it, the humanity cannot survive. Thank you very much. This is future of farming. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your excellent presentation. और माफ़ी चाहूँगा आप सबसे, थोड़ी देर हो गई मुझे, लेकिन ये टॉपिक खास करके वीट के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस होना, ये आप समझिए कि ऐसे वक्त में ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है जब वीट को लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट है इंडियन मार्केट में, पॉलिसी मेकर्स के बीच, स्टेक होल्डर्स के बीच में। और मुझे जो टॉपिक दिया गया है वीट फॉर पीस, इंडियाज़ रोल इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, तो आप समझिए कि वीट ने तो पीस छीना है अभी लोगों का, और जिस तरह से डिसीजन आए हैं अभी स्टॉक लिमिट को लेकर और तमाम उसको लेकर के, इससे कहीं ना कहीं मार्केट में इस बात को लेकर चर्चा और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो मेरा सबसे पहला सवाल श्वेता जी आपसे होगा, क्योंकि जब हम वीट की बात कर रहे हैं और ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में इंडिया के वीट का क्या रोल हो सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले तो आप ये बताएं कि जब इंडिया अभी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, इंडिया में स्टॉक लिमिट लगी हुई है, अब बात इंपोर्ट की हो रही है, इंपोर्ट के ऊपर मैं डिटेल में आगे बात करूंगा, लेकिन ऐसे हालात में जो ग्लोबल मार्केट का सिचुएशन है डिमांड सप्लाई का, इंडिया की वजह से क्या वाकई डिस्टर्ब हुआ है या ग्लोबल मार्केट ने सीख लिया है इंडिया के बिना जीना? थैंक यू मृत्युंजय जी। मैं वैसे बता दूं, मैं यहाँ पे अपनी एज एकेडमिक कैपेसिटी में बैठी हूँ। हम लोगों ने 19 साल का एनालिसिस किया था 20 कमोडिटीज़ का, उसमें से एक वीट थी। वीट में हमने ये समझाया कि इंडिया कंसिस्टेंट एक्सपोर्टर या इंपोर्टर नहीं है, ही इज़ अ रेजिड्यूअल एक्सपोर्टर इंपोर्टर। सो यूजुअली हम नॉन ट्रेडेबल जोन में रहते हैं, बट येस लास्ट के कुछ सालों में हमने बम्पर एक्सपोर्ट ज़रूर किया है, एंड देयर हैज़ बीन अ ग्लोबल क्राइसिस, इंडिया हैज़ प्लेड अ रोल, but I sense that market already knows that India is in that non-tradable zone. Therefore, impact हुआ ज़रूर है, इसमें कोई doubt नहीं है. We are all tracking wheat regularly, but I think it's an awakening call even for our own country, where we all felt कि हमारे rice और wheat को कुछ नहीं हो सकता. लास्ट के 2 साल ऐसे रहे हैं जिसमें कंट्री ने इन दोनों स्टेपल क्रॉप्स में सफ़र किया है। दोनों स्टेपल क्रॉप्स हमको इतना लेसन्स ट्रेड पॉलिसी के टर्म्स में भी देके गई है
कि हमारे पास शायद उतने सरप्लसेस नहीं हैं जितना हम सोचते थे. सो इट्स अ वेकअप कॉल फॉर आवर ओन कंट्री एंड ग्लोबली ऑल्सो. ओके, तो आप कह रहे हैं कि इट्स वेकअप कॉल फॉर ऑल ग्लोबली ऑल्सो, लेकिन मैं एक बात मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप देखिए कि ग्लोबल मार्केट में, अगर मैं गलत नहीं हूँ आंकड़ों में, तो ग्लोबल राइस मार्केट में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट 40% के आसपास है. इंडिया ने राइस एक्सपोर्ट को बैन कर दिया, उसके बाद भी ग्लोबल मार्केट ने मैनेज कर लिया. तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक्सपोर्ट बैन करके ग्लोबल मार्केट को ये सिखाते हैं कि आप अल्टरनेट मार्केट तैयार कर लो, और वो अल्टरनेट मार्केट तैयार भी कर लेते हैं, फिर इन फ्यूचर जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जब फार्मर को प्राइस देने की बात आएगी, तब जब हम ग्लोबल मार्केट में ढूंढने जाएंगे तो हमें मार्केट नहीं मिलेगा. कहीं हम उस डायरेक्शन में तो नहीं बढ़ रहे हैं? बिल्कुल 100%. जो हम ये एड हॉक या नी जर्क पॉलिसीज़ जिसको हम लिखते रहते हैं बार बार, ये नी जर्क पॉलिसीज़ बिल्कुल 100% मार्केट को डिस्टर्ब करती है, जो बहुत सालों लगते हैं इस्टेब्लिश करने के लिए. हम लोगों ने नॉट जस्ट नॉन बासमती, बासमती पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जो बहुत सालों से मार्केट बनी है. सो क्लियरली एन एड हॉक नी जर्क रिएक्शन ऑफ पॉलिसीज़ लाइक दिस, एंड नॉट जस्ट ग्लोबल पॉलिसीज़. अगर आपके पास स्टॉकिंग लिमिट लगती है तो डोमेस्टिक मार्केट भी डिसरप्ट होती है. सो एनी ट्रेड रिस्ट्रिक्टिंग पॉलिसीज़, इट अफेक्ट्स नेगेटिवली both the global markets and us. Particularly so in case of rice, as you very rightly said, 40% share is India's. In case of non-basmati, we exceed the 60% share in global market. So when in case of non-basmati, we restrict exports, we really influence the global markets. However, ye ek awakening, as I've already said before also, the country also did not anticipate कि हमारी crop इतनी बुरी तरीके से affect होगी. Interestingly, crop affect हुई है, government के numbers ये reflect नहीं कर रहे हैं. So clearly अभी कई सारी catching up है, government को भी, market को भी. एक चीज़ that I have been consistently writing about also is, while sugar and other industries are so nicely organized कि domestic market में कोई ना कोई वो number throw करते हैं कि उनकी क्या assessment है crop की. आपके wheat में there are so many sporadic numbers even from associations. किसको ट्रस्ट करें? नहीं, ये जो शुगर में भी है मैम, शुगर में भी डेटा को लेके बहुत डिबेट होता है, प्रोडक्शन एस्टिमेट को लेकर. 100%. तो मैं ये मानता हूँ कि एग्रीकल्चर का मार्केट ही हमारा ऑर्गेनाइज नहीं है. आप किसी भी क्रॉप को ले लो, और किसी भी क्रॉप में उसमें प्रोडक्शन के एस्टिमेट में बहुत दिक्कत है, बहुत डिफरेंस है. बिल्कुल है. ISMA के numbers for example, and I may not be, I'm refraining from going to that extent, but ISMA has also been fluctuating the numbers. But we have to give it to them that they follow a structural process of survey, and they do come out with a number. And we wish कि Wheat Association भी at least comes out with a more robust process, at least a number of what they think the market is. So for example, पिछले साल की crop का number आज भी हम debate कर रहे हैं. क्या 92 थी, क्या 102 थी, या 110 थी? We still don't know. Exactly. अब डेल्टा के ऊपर हम लोग काम करते हैं because we track crop balance sheets. गवर्नमेंट के हिसाब से डेल्टा 2 मिलियन टन का है between last year and now, and हमारे हिसाब से 6 मिलियन टन का है. So गवर्नमेंट के हिसाब से 6 का है, and गवर्नमेंट के हिसाब से 2 मिलियन टन है, and मार्केट के हिसाब से 6 मिलियन टन का डेल्टा है. अब ये दोनों नंबर्स बैलेंस शीट बिल्कुल डिस्टर्ब कर देते हैं. हम एज एकेडमिक्स जब बैलेंस शीट देखते हैं तो हम देखते हैं कि क्या स्टॉक्स कम हो रहे हैं तो प्राइसेस ऊपर जाने चाहिए. So when we put government number data, ironically what it shows is that the correlation is positive. That means stocks भी ऊपर जा रहे हैं, inflation भी ऊपर जा रहा है. That cannot happen clearly. प्रोडक्शन भी ऊपर जा रहा है. Exactly. So वो इसीलिए ऊपर जा रहा है stocks, क्योंकि production इनके हिसाब से बहुत ज़्यादा है. But एक private estimate जो credible हो, robust हो, sticks the necks out, हम लोग जैसे private estimate डालते हैं, वहाँ correlation ठीक आ रहा है. So there is a lot of catching up by the government, by the market sector also. You will also have to come up and give us an estimate. Because हम लोग जो study कर रहे हैं, and a lot of responsibility lies there. Just parting thought is, हमसे ज़्यादा हमारी commodity USDA track कर रहा है. So even government goes to USDA to look at numbers. How ironical can that be when rice and wheat are so staple to us? ये आई ओपनर है हमारे लिए. ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि हापुड़ में कितना गुड़ का प्रोडक्शन होगा, ये हमें USDA बताता है. यूपी की एक जगह है हापुड़, वहाँ पर गुड़ का कितना प्रोडक्शन हो रहा है ये हमें अमेरिका की एजेंसी बताता है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस डायरेक्शन में भी काम हो. वो हर एग्री कमोडिटी में, और हमारा एग्री का मार्केट हाईली अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है. आप देखिए कि, और इसीलिए जब हम प्राइस की बात करते हैं तो वो एक्चुअल डेटा हमारे पास नहीं होता है, और उस वजह से ये सारे मिसमैच सामने आते हैं. लेकिन पारिक साहब आप बताइए कि क्या रियली हम शॉर्टेज फेस कर रहे हैं व्हीट का? क्योंकि बार बार सरकार ये कह रही है कि कोई शॉर्टेज नहीं है, है ना. सरकार के पास एम्पल स्टॉक्स हैं व्हीट के, फिर भी आप लोग मानने को तैयार नहीं हैं, और आप कहते हैं कि सरकार का डेटा ठीक नहीं है.
13 मिलियन टन के आसपास का प्रोडक्शन का एस्टिमेट है गवर्नमेंट का, उसके बाद भी सरकार को स्टॉक लिमिट लगाना पड़ रहा है। व्हाट इज द एक्चुअल सिचुएशन ऑन द ग्राउंड? नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रेडिंग कम्युनिटी के काफ़ी लोग बैठे हैं और वो सब ये बात से मानेंगे भाव ही भगवान है। फाइनली द प्राइस टेल्स यू व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी, राइट? एंड व्हेन वी से कई बार प्राइस गड़बड़ भी बताते हैं, स्पेकुलेशन हो जाता है, सट्टेबाजी से दाम बढ़ा दिए जाते हैं, तो प्राइस कई बार ग्राउंड रियलिटी नहीं भी बताते हैं, गलत बताते हैं। शॉर्ट टर्म सट्टा शॉर्ट टर्म चलता है। व्हेन यू सी द लॉन्ग टर्म लाइक रिग्रेशन, राइट, यू कम टू सी व्हाट हैज हैपेंड। अभी जहाँ तक गेहूं की अवेलेबिलिटी की बात है, सरकार का आपने जो बताया डेटा 113 और ओवर इंथुजियास्ट लोगों ने तो 115 तक बता दिया था जब मैंने पंजाब से प्रोक्योरमेंट ने पिकअप किया था। मेरा पर्सनल व्यू ये है, बेस्ड ऑन लॉट ऑफ डिफरेंट डेटा सेट्स आई हैव सीन। इनफैक्ट कल मैं पूरे दिन आई वाज विद इकोनॉमिस्ट ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च की रिव्यू कमेटी में बैठता हूँ मैं। And one thing I could make out is that we are looking again this year, where we would be close to 100 million metric tons of production, plus minus 2 to 3%. Now, what has that led to? That had led to situation that based on हमारा जो stock पड़ा था, उसके ऊपर हम अगर अपना consumption add कर लेते हैं, so there would be deficit of 6 million metric ton this year. अभी 6 million metric ton कम है, लेकिन but we have to give a credit to government. Government also understand that market moves on sentiments also. अगर सरकारी बोलेगी ना बहुत कमी हो गई है, अभी कुछ करना पड़ेगा, राइट? सो सडनली यू विल फाइंड दैट एक्चुअली लाइक जो आपने बोला स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट काफी स्ट्रांग हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट स्टॉक लिमिट लगाते हुए ये बोलते हैं नहीं माल तो पड़ा है, ये तो एक जस्ट लाइक जस्ट टू हैव अ प्लान बी रेडी, वी आर पुटिंग द स्टॉक लिमिट। I believe in like in short term you'll see that the only option would be like opening up of import, right? That's a requirement. If we see last year से अगर हम compare भी करेंगे, depending on which market we are picking, नहीं, इस बात की क्या गारंटी है कि इंपोर्ट अगर अलाउ हो जाता है तो प्राइस कूल ऑफ हो जाएंगे, जब स्टॉक लिमिट के बाद लंबे समय तक कूल ऑफ नहीं रह पा रहे हैं प्राइस, 2-3 दिन दाम गिरे फिर बढ़ने लगे? नहीं सर, स्टॉक लिमिट तो आई हैव ऑलवेज सेड इन मोस्ट ऑफ द फोरम्स, राइट, इट इज वेरी रिग्रेसिव पॉलिसी। स्टॉक कंट्रोल से यू कैन ऑलवेज हैव लाइक ओनली करेक्शन, जो आप बोल रहे हैं ना, जब ट्रेडर स्पेकुलेशन करता है वैसे गवर्नमेंट स्पेकुलेट कर रही है कि स्टॉक लिमिट लगा दिया, थोड़े दिन के लिए भाव गिरा। लॉन्ग टर्म सप्लाई एंड डिमांड कम्स इन, सो गवर्नमेंट हियर एक्ट्स एज अ स्पेकुलेटर, bring the price down, लेकिन एंड ऑफ द डे सप्लाई एंड डिमांड नंबर्स आर वेरी क्रिटिकल, राइट? और सप्लाई एंड डिमांड बोल रहा है कि आपको लाइक 6 मिलियन का शॉर्टेज है, राइट? तो जब तक आप दूसरे ओरिजिन से अगर माल नहीं लेंगे, ये शॉर्टेज आप कम नहीं कर पाएंगे। और जब अगर शॉर्टेज रहेगा, अगर सप्लाई इज रिस्ट्रिक्टेड एंड डिमांड स्टिल एग्जिस्ट, राइट? बिकॉज वीट में डिमांड हमने अभी हैंड रेस किए थे, आई फाउंड 85% ऑफ पीपल सेड दैट एक्चुअली दे स्टिल विल ईट वीट, राइट? नाउ इस सिनेरियो के अंदर आपका डिमांड नहीं नीचे डिप होने वाला है, लेकिन सप्लाई नहीं है। जब आप ये कह रहे हैं कि इंपोर्ट अलाउ करना चाहिए, तो कितना इंपोर्ट होना चाहिए वीट का, राइट? हाउ मच? सो मेरा पर्सनल व्यू तो ये है कि लाइक उसमें आप रिस्ट्रिक्शन मत रखिए कितना करना चाहिए, राइट? अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, ओपन इट, लेट द मार्केट डिसाइड, टिल यू सी द प्राइस कूलिंग ऑफ, तब तक आप रखिए, राइट? एंड देन यू प्राइस अगर ज्यादा गिर गए, फार्मर को नेक्स्ट सीजन में दाम अच्छे नहीं मिले, पंजाब में सर चुनाव हार जाए पार्टियां, तो फिर आप जिम्मेदारी लेंगे इसकी? नहीं, मैं चुनाव की पॉलिटिकली सेंसिटिव कम्युनिटी है ना। नहीं सर, चुनाव की बात नहीं करता हूं मैं, लेकिन मैं अगेन कमिंग टू योर बताना पड़ेगा आपको, फार्मर को अच्छा प्राइस मिलना चाहिए, उस पे भी बोलता हूं लास्ट के अंदर। लेकिन आपने जो बात बोली कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू ओपन अप इंपोर्ट्स, राइट? आप अक्टूबर में स्विंग की बात कर रहे हैं, यू आर हैविंग गुड 3 to 4 months, राइट, वेयर यू कैन सी वेयर द प्राइसेस आर मूविंग, राइट? ये हमने मस्टर्ड में भी देखा था, सरकार ने इंटरवीन किया ना, इतना मस्टर्ड खरीदा, प्राइस को स्टेबलाइज किया। सो इन केस वीट के अंदर इफ वी सी दैट एक्चुअली बहुत ज्यादा प्राइस गिरती है, they always have ways and means to do it, right, where they can control, like in September they can have a look at it, or in fact government should be very careful. Even I would say that ke October mein they need to do a survey on what is the farmers sentiment, right? वो कितना स्विंग करना चाहेगा, क्या वो शायद चने पे शिफ्ट करने की सोचेगा, इस बेसिस के ऊपर दे शुड कॉल अब नाउ कमिंग टू योर लाइक कि इलेक्शन का क्या सर, आप पंजाब के अंदर वैसे ही कौन सा ना रूलिंग पार्टी को है ना कुछ मिलने वाला है, राइट? इग्नोर आई वुड से। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं इग्नोर करना चाहिए। अच्छा गरिमा जी, जो बात दीपक कह रहे हैं कि वीट इंपोर्ट अलाउ करना चाहिए, लेकिन मार्केट डायनेमिक को देखते हुए जो अभी हमारा सिचुएशन है पॉलिसी फ्रंट पे, फार्मर्स का आप देखिए कि चूँकि फार्मर्स को भी सरकार को देखना है कि वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, उन सबको देखते हुए क्या आपको रियली लगता है कि इंपोर्ट इज रिक्वायर्ड? So thank you मृत्युंजय जी। एंड जब ये इस फोरम में मुझे एक टॉपिक मिला था, वीट फॉर पीस, बिफोर वी जंप इनटू अ कंक्लूजन वेदर इंडिया नीड्स इंपोर्ट और नॉट, आई थॉट ऑफ टेकिंग अ स्टेप बैक and dwell upon the topic wheat
for peace. Over the history of mankind, war and hunger have written histories. And let me take this audience back to one incident, Great Depression 1929. If I ask the audience here, why did the Great Depression happen in 1929? Anybody? Which is correct, and then a lot of people say it happened because of stock market crash. And also French Revolution was one of the key factors, and food was becoming paramount. But one of the reasons why the stock market crashed was because of food. If you look at the Agriculture Marketing Act of 1929, what happened then was, which was driven by Hoover, they said that the country needs to have surpluses. And so what happened was the government was giving subsidies, the farmers started taking more land, they started producing more, and then it got into a spiral. The surpluses went so much because their own country needed wheat, the food, and also Europe needed because of the war conditions. And then what happened was, because the farmer was not making money, they started producing more to pay off their debts. And that spiral continued to a stage when in 1930s, the farmers went bankrupt. That was then. And subsequently, there was AAA Act, which was Agriculture Adjustment Act, I think in 1932 or so, which kind of wanted to contain the situation. मेरा जो सवाल है वो ठीक है, जो आप बैकग्राउंड में ले जा रही हैं सबको फ्लैशबैक में, वो ठीक है. सर इस फ्लैशबैक का बहुत इम्पोर्टेंस है. इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल है, लेकिन मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन अभी ये है क्योंकि कि इंपोर्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको लेके जो ट्रेडर यहाँ पर हैं वो आपको सुन के प्लान भी करेंगे अपना, वो अपना वेयर हाउस भी कहीं बुक करेंगे कि इंपोर्ट होने वाला है कि नहीं होने वाला है. लोगों ने पिछले साल किया भी था, हुआ नहीं अलाउड, उनको मतलब मुफ्त का वो चार्ज रेंटल देना पड़ा, है ना. आप तो उनको ये बताइए कि उनको बुक करना चाहिए नहीं करना चाहिए. So, अब हम इंडिया पे आ जाते हैं. तो इंडियन जर्नी हमारी रही है एक, starting from famine to self-sufficiency to a stage where we started exporting also. And let us take a pause here. आज की डेट में हम अपने आप को self-sufficient मानते हैं. अगले 10 साल में the question is not whether India should open up import today. As a country, are we ready to be in a situation to handle the demand, the consumer, 1.4 billion population, 1.7 billion population by 2050? Are we ready as a country to handle that kind of a demand wherein 80% of the poor people are going to exercise their choice of food, which you cannot manipulate, which the government is doing today. They not manipulate, but they try to distort the distribution of wheat, of rice, of pulses, of millets to some extent. And rahi baat import ki, I would put it this way, that paramount for the country is to have availability of food grain. Price is a second subject. We as a country handled COVID situation fantastically. The reason is, we did not see any Arab Spring. You are not agree with the government that we have ample stocks of wheat? Sir, I am always agree with the government. That Then is why the you are underlying raising finger statement. on the stock situation, on availability situation? And so, once again, we did not see any Arab Spring because we had the wheat. Now we need to have the wheat. And so if import is the answer, let us look at we that. have sufficient stock or not? Sir, stock हमारा जो आज की डेट में है, country में, we will go by the government numbers. We are very close to the buffer norm. कल को अगर कोई crisis आता है, or anything happens which is not in our control, are we ready for that? Probably the answer is no. And there is no harm in looking at options which increase the availability of food grain in the country. Right, ठीक है, तो आप मतलब कह रही हैं कि import करना चाहिए. अब सर आप जरा बताइए, जब हम import dynamic की बात कर रहे हैं, तो क्या global market का situation अभी इस वक्त क्या है wheat को लेके? अगर इंडिया ने import को open up किया, तो क्या हम जितना हमें चाहिए wheat उतना हम import कर पाएंगे, पहली बात. और अगर हम import open करते हैं, तो क्या global market में prices नहीं बढ़ जाएंगे? उस price fluctuation को इंडिया manage करने के लिए कितना ready है, कितना तैयार है?
मेरे हिसाब से हम सारे जो डिसीजंस हैं वो इस बेसिस पे ले रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास स्टॉक 7.5 मिलियन टन बफर से स्टार्ट किया था और 26.5 खरीदा है। वो 26.5 में से लास्ट ईयर 16.5 मिलियन टन पीडीएस में रिलीज किया था, 10 मिलियन ओएमएसएस में रिलीज किया था। हम एक चीज़ भूल रहे हैं कि इस बार प्राइवेट ट्रेड के पास, अब प्राइवेट ट्रेड का मतलब सिर्फ ट्रेडर नहीं है, प्राइवेट ट्रेड का मतलब है किसान। किसान के पास इस बार हमारी एस्टिमेट, हमारे सर्वेस के हिसाब से 15 से 20% किसानों ने माल ज़्यादा रोका है इन एंटिसिपेशन ऑफ बेटर प्राइसेस। और उसमें मेरे हिसाब से उन्होंने ये वीट रोक के कोई गलती नहीं करी है। मेरे हिसाब से उनको भी हक है कि उनका भी, गवर्नमेंट कुछ चाहती है कि फार्मर की जो इनकम है वो डबल हो। गवर्नमेंट का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि फार्मर को बेटर प्राइस ना मिले। अगर फार्मर की होल्डिंग कैपेसिटी बड़ी है, जिसके पीछे मैं सरकार को ही क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने जो डायरेक्ट किसानों के बैंक के खातों में जो पैसे डालने शुरू किए हैं, उसके वजह से किसान को भी होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ गई है। और उन्होंने भी, आप क्या कह रहे हो, पैसा देना बंद कर दें? नहीं, गेहूं, मैं पैसे देने बंद करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि गेहूं अगर वो होल्ड कर रहा है इन एंटिसिपेशन ऑफ कि उसको बेटर प्राइसेस मिले, और अल्टीमेटली उससे बेनिफिट कंट्री का ये होगा। ये अच्छा आपने बताया। नहीं, एक सेकंड उससे सर, एक सवाल मैं जोड़ दूं। एक मिनट मुझे आप समाप्त करने दें। उससे बेनिफिट कंट्री का ये होगा कि अगर किसान को अच्छी इनकम मिलती है तो वो ज्यादा सोइंग करेगा। नहीं, आपकी बात और एग्री वो करता हूं। जरूरी है। नहीं, जो आप कह रहे हैं उसी में एक सवाल मैं जोड़ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि 15 से 20% होल्डिंग अभी फार्मर के पास है, राइट? जी बिल्कुल। अगर 15 से 20% होल्डिंग फार्मर के पास है, तो क्या ये एक ऑप्शन नहीं हो सकता है कि आप इंपोर्ट ओपन अप करने की जगह फार्मर को कुछ और इंसेंटिव देके उनकी फसल खरीद लें? क्या ये एक ऑप्शन हो सकता है? नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और मेरे हिसाब से लगातार गेहूं मार्केट में आता रहेगा, और हम सिर्फ गवर्नमेंट के स्टॉक के बेसिस पे एसएनडी ना बनाएं। फार्मर के पास कितना स्टॉक है, ट्रेडर्स के पास कितना स्टॉक है, उसको भी कंसीडर करें, जैसा कि कोई भी दूसरी इंडस्ट्री करती है। सोया प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर जब अपना एसएनडी बनाती है, वो ये देखती है कि फार्मर के पास कितना स्टॉक है, वो ये देखती है प्रोसेसर्स के पास कितना स्टॉक है। और मुझे नहीं लगता कि आज जो स्टॉक्स डिक्लेयर हो रहे हैं 10-11 मिलियन टन, वो सही हैं। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो आज भी डिक्लेयर नहीं होते हैं। मेरे हिसाब से अगर ओवरऑल देखें तो इंडिया में आज के दिन में पिछले साल से अगर 5-6 मिलियन टन प्रोडक्शन ज़्यादा है। पिछले साल व्हाटएवर वाज द नंबर, अगर 95 था तो इस बार 100 है, या 98 था तो 103 है। बात यह है कि 5 से 6 मिलियन टन अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है, कंजम्पशन हमारा 2 या 3 मिलियन टन बढ़ा है। लास्ट ईयर 101 था, इस बार 104 है। मेरे हिसाब से हम कंफर्टेबल हैं और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, क्योंकि इट विल हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ द फार्मर। फार्मर क्यों फिर सो करेगा वीट? जैसा कि हमने देखा है कि ऑलरेडी मस्टर्ड में जो हालत हुई है कि एमएसपी से 10% किसानों को इतना नुकसान हो रहा है कि आज गवर्नमेंट जाग रही है कि भाई आप इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की बात कर रहे हैं। अब तो मस्टर्ड के प्राइस ऊपर आ गए एमएसपी से। अब आ गए हैं, लेकिन आप ये देखिए कि किसानों ने कितना माल जो है वो एमएसपी से 10% नीचे बेचा। तो हम क्या ऐसी सिचुएशन चाहते हैं कि किसानों को ये सिग्नल दें कि भाई आप नवंबर में जब सोइंग करेंगे उससे पहले पोर्ट पे सारे जितने भी साउथ पोर्ट्स हैं वहां पर 4-5 मिलियन टन गेहूं रखा रहे और प्राइसेस डिप्रेस हो जाएं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 1800 रुपए में जब वन नेशन वन रेट में ओएमएसएस में गवर्नमेंट ने वीट रिलीज किया, प्राइसेस डिप्रेस थे जब मार्केट खुला। अगर प्राइसेस हम फार्मर की इनकम को डबल नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो हमें सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, आप जब ये कह रहे हैं कि मतलब कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि फार्मर के पास 15 से 20% की होल्डिंग होगी वीट की? मोर देन 1-2 स्टेट में ही। वही तो पंजाब हरियाणा में नहीं है। अच्छा अच्छा, राजस्थान में। तो मतलब हाँ, लेकिन ये अच्छा, जब आप ये कह रहे हैं कि 15 से 20% बहुत बड़ा स्टॉक होता है, उतना तो हम इंपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से। अगर हम इंपोर्ट अलाउ भी होगा, जरूरत नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो नहीं, अगर 15 से 20% अगर आप कह रहे हैं कि फार्मर के पास है, सरकार के पास भी आप कह रहे हैं कि ठीक ठाक स्टॉक है, तो फिर सरकार पैनिक में क्यों है? स्टॉक लिमिट क्यों लगा रही है? क्योंकि सरकार को लगता है कि जो स्टॉक डिक्लेयर हो रहा है वो सफिशिएंट नहीं है। आपको लगता है होर्डिंग हो रही है गेहूं में? बिल्कुल हो रही है। हो रही, कौन कर रहे हैं? वो ढूंढना आपका काम है, आप ढूंढिए। नहीं, मैं तो आपके जरिए ढूंढ रहा हूँ ना।
मैं आपके जरिए ढूंढ Invest- रहा हूँ, क्या investigate- बड़े in- प्लेयर कर रहे हैं होर्डिंग? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं, मेरा काम नहीं है, इंडस्ट्री का काम नहीं है, वो मीडिया का काम है। चूंकि आप जब एक्सपर्ट हैं, जब आप ये ओपनली कह रहे हैं कि होर्डिंग हो रही है, तो आपके पास इनपुट होगा। आप जरा बताइए कि होर्डिंग कहाँ हो रही है, कुछ तो क्लू दीजिए, मैं ताकि हम वो कैमरा लेके वहाँ सरकार पहुँच ने उसीलिए स्टॉक लिमिट लगाई है हाँ। कि भाई जो एग्जाम देने नहीं आ रहे हैं, हाँ। आप कैसे उनको पास या फेल करेंगे? जो स्टॉक डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, उस पे कैसे आप उनके यहाँ आप रेट करेंगे या उनके यहाँ कैसे वेयर हाउस जाके चेक करेंगे? माल है, तो ये बहुत बड़ा करेज है कि ये ओपन मन से ये कह रहे हैं कि गेहूं में जमाखोरी हो रही है, ये हेडलाइन है। गवर्नमेंट भी बोल रही है ये चीज। हाँ, गवर्नमेंट बोल रही है, बिल्कुल बोल रही है, और आप Government उसको बोल रही है, इंडोर्स मैं कर तो- रहे हैं। मैं तो जो गवर्नमेंट बोल रहा है, नहीं, मैं तो बिल्कुल जो ठीक बात है government सर। बोल रही है, नहीं, उसको हाँ। सही साबित कर रहा हूँ नहीं, कि हाँ, अच्छी बात गवर्नमेंट है, सही कह रही है। इसमें कहीं से कोई आप बिल्कुल अपनी भाई, बात रख जितना रहे हैं, अच्छी जितना बात है। गवर्नमेंट के पास जो नॉलेज है और इंफॉर्मेशन है, उतना शायद हम सबके पास कलेक्टिवली नहीं है। एग्जैक्टली, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं। कितने लोगों को लगता है गेहूं में जमाखोरी हो रही है, आप लोग कर रहे हैं? अच्छा, अनअकाउंटेड निकल जाएगा सर, लेकिन निकल नहीं रहा ना। 2 दिन दाम गिरे, फिर बढ़ने शुरू हो गए, निकलेगा आपको लगता है? तो कितना वेट किया जाए कि निकल जाए तब? अच्छा, तो हाँ 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 राइट राइट। हाँ तो सीख चुके हैं, चूहे सीख चुके हैं, आप ये कह रहे हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ, आपके बगल में बैठे हैं वो, देखिए अजय जी। ये बात सर, मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूँ, लेकिन चूंकि आप खुद फ्लावर मिल हैं, तो मैं कोई अब अगर जो स्टॉक कर रहा होगा, जो होर्डिंग कर रहा होगा, वो खुद से तो बताएगा नहीं मैं होर्डिंग कर रहा हूँ, है ना? हाँ नहीं, ठीक बात है आपकी बात। हाँ एग्जैक्ट, हाँ नहीं, तो आप ही ने कहा ना कि वो चूहे सीख लेते हैं कौन सी दवाई खानी है, आपने नहीं सीखा होगा, ऐसा तो है नहीं। रास्ते बहुत है ना सर, रास्ते बहुत है ना, जो मैं नहीं समझ पा सर रहा मैं हूँ। आपको रास्ता बताता हूँ किस तरह से होता है। हाँ अरे मिलर्स का कोई आपको ठप्पा थोड़ा लगा हुआ है, आप मिलर्स भी हैं एक वक्त में, आप एक वक्त में स्टॉकिस्ट भी बन सकते हैं, सास भी कहीं बहू होती है ना, डबल रोल तो प्ले कर सकते हैं ना आप। अरे सर, हमने ऐसी बहुत कहानी देखी है सर। मैं गेहूं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक है, आप जो है अपनी जगह सही हो सकते हैं, मैं आपकी बात को मैं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसी बहुत सारी कहानी देखी है ना, गेहूं में या बाकी कमोडिटी में। दालों में जब तुअर 200 रुपये किलो हुआ था, हमने बड़ा एक शो किया था, समंदर वाली साजिश, और उसमें कैसे शिपमेंट को डिले किया गया था, शिपमेंट को डिले करके कैसे काउंटर पोजीशन एक्सचेंज के ऊपर लिया गया था। ऐसी कहानी हमने बहुत देखी है सर, वो अलग मसला हो सकता है। फारिक साहब कुछ ऐड करना चाहिए। हाँ, सो 3 चीजें हैं इसके अंदर। पहली चीज, अगर कोई जमाखोरी कर रहा है, जो मुझे भी लगता है कि जमाखोरी कुछ हद तक हो रही है, राइट, और ये मैं एग्री कर रहा हूँ सर, मिलर ज्यादा नहीं कर रहे हैं, राइट। ज्यादा नहीं कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? थोड़ा बहुत तो सर सबको अपनी फैक्ट्री चलानी, उनको गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है सर। 75% ऑफ एनुअल प्रोडक्शन गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ, तो इतना वो जमाखोरी नहीं हुई नहीं, ना, वो स्टॉकिंग जमाखोरी नहीं स्टॉकिंग है। कर रहे हाँ, हैं। स्टॉक सो वो ठीक है, जमाखोरी नहीं है। सेफ्टी स्टॉक है। हाँ, सेफ्टी स्टॉक अलग। अब हाँ सही बात है, बिल्कुल। नहीं वो ठीक है ना, एग्री सर, देयर आई एग्री। वो ठीक सो अभी जिसने जमाखोरी की है, जिसने भी जमाखोरी की है, अगर आप स्टॉक लिमिट, जैसे उन्होंने बताया, चूहे ने सीख लिया है खाना, तो अगर स्टॉक लिमिट से तो ये बाहर आने नहीं वाला, क्योंकि चूहा सीख किससे चुका आएगा है। बाहर? ये तभी आएगा जब प्राइस करेक्शन होगा, और प्राइस करेक्शन तभी हो सकता है कि जब गवर्नमेंट इंपोर्ट खोलती है, तो जिसने स्टॉक किया वो बोलेगा अब मैं इससे ज्यादा लीवरेज नहीं ले सकता, तो मुझे मार्केट के अंदर आना है। और ये तो कह रहे हैं कि 4-5 मिलियन टन पोर्ट पे पड़ा रहेगा, फार्मर मर जाएगा। नहीं सर, ये थोड़ी सी गलत फहमी है कि लाइक पोर्ट पे पड़ा रहेगा। जो भी आदमी इंपोर्ट करेगा सर, एग्जैक्टली। सो इसके अंदर लिक्विडेशन होगा, जब लिक्विडेशन होगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस कूल ऑफ होंगी। और सर अभी भी हम 27-28 रुपए की बात कर रहे हैं, एमएसपी 23 रुपए, बहुत गैप है, राइट।
अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये स्टॉक अगर जो छुपा हुआ स्टॉक है वो बाहर आए, तो उसके अंदर अगर इंपोर्ट खोलती है तो जब करेक्शन देखेगा तो कोई भी आदमी है अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेगा। तो दैट्स व्हाई आल्सो अगर जमाखोरी हो रही है तो भी जरूरी है। अब जमाखोरी होती कैसे सर, मैं आपको बताता हूँ, एंड दिस इज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द ग्राउंड। लाइक जनरली ओपन नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ सही बात है, कौन कर रहा है ये बहुत जरूरी है सर जानना। छोटे प्लेयर नहीं कर रहे हैं, छोटे प्लेयर नहीं कर रहे हैं सर, नाम थोड़ी बताते हैं सर। सर अगर आप गारंटी देते हैं अच्छा एक लीगल है ना सपोर्ट हायर करेंगे तो मिलेगा करेंगे आपको, सर। मिलेगा सपोर्ट आपको, बताइए। लेकिन सर सर सरकार तो सर स्टॉक करती है सर, जमाखोरी नहीं करती है ऑलवेज। सर इट इज पैथेटिक सर। मैं कल भी मैंने गवर्नमेंट के सामने चीज बोली है कि जब तक आपने स्टॉक लिमिट नहीं लगाई, आप स्टेटमेंट दे रहे हो जमाखोरी के कारण हम रोक रहे हैं। जब स्टॉक लिमिट नहीं है तो स्टॉकिंग है, जमाखोरी नहीं है। स्टॉक लिमिट के बाद अगर कोई रखता है तब जमाखोरी है। सर आई हैव सेड दैट टू द गवर्नमेंट कि आपका स्टेटमेंट ही गलत है। सर इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर दोनों सेक्रेटरी को काउंटर से मैंने ही किया था, मेरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। पॉइंट ये है कि हम ट्रेडर को, और सर एक और चीज, बेचारा किसान, बेचारा कंज्यूमर, मैंने कहा बेचारा ट्रेडर भी हो गया है। रोज नीजर जब रिएक्शंस आते बिल्कुल हैं, ठीक बात है, हाँ। थोड़ी सी तेजी आ गई, राइट, जैसे आपकी दाल की बात है, दाल में लगी आग, लगाओ स्टॉक लिमिट, राइट। अभी आप ट्रेडर जो है वो भी अपना इन्वेस्टमेंट करके बैठा है। आपने अगर उसको पहले से अगर दिया कि भैया हम स्टॉक लिमिट ला सकते हैं, अगर प्राइस इसके ऊपर बढ़ा, आप दे दीजिए ना एक स्टेटमेंट कि इफ तुअर प्राइस गोज अबव 120 विल कम विद स्टॉक लिमिट, इफ व्हीट प्राइस गोज अबाउट 26 रुपीज विल कम विद द स्टॉक लिमिट। पीपल वुड बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पे क्या है कि सारा का सारा जो ठीकरा है वो ट्रेडर के सर पे फोड़ दो, उसको आप बड़ा, जो ये गाली मानता हूँ सर मैं, जमाखोर है, काला बाजारी करता है। उधर हाथ मत दिखाओ, इनको Right. दिखाओ, ये क्या बोल रहे हैं बगल में, ये आप इनको भी नहीं। So I believe like everybody is having dignified way of making money। और आप ये कर दीजिए एक और ये नहीं नहीं चीज, ठीक है। अब ये जो आपने पॉइंट रखा है ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए कई बार हम डिबेट कर रहे हैं, और डिबेट करने का मतलब हमारा ये नहीं कि हम किसी को कल्प्रिट घोषित कर रहे हैं कि आप कल्प्रिट हैं। और ये देखिए ट्रेडर, मुनाफा कमाना धर्म है, ट्रेडर का मुनाफा कमाना धर्म है, इस बात पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। मुनाफा कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, मुनाफाखोरी में दिक्कत होती है। लेकिन हाँ, अब अगर ट्रेडर का अपना कंपल्शन है, ट्रेडर की भी मजबूरी है, बात सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब अगर फ्लावर मिल चलाना है तो उनको स्टॉक तो चाहिए गेहूं का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ ठीक बात। हाँ, और तभी दाम बढ़ जाते हैं, सही बात है। एग्जैक्टली हाँ। नहीं, एफसीआई तो बोल के कर रहा है ना। दिक्कत ये कि एफसीआई बताता है ना कि इतना स्टॉक है, ट्रेडर बताता नहीं है सर। यही दिक्कत है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ। नहीं बिल्कुल हाँ हाँ ठीक बात है, स्टॉक है तो फिर क्यों लगा। ठीक है, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, ये सब जो सारी बातें हो रही हैं गेहूं को लेकर, स्टॉक लिमिट और ये इतनी सारी चिंता, ये सारी बातें, इन सब के लिए जिम्मेदार एक ही शख्स हैं, और वो शख्स हैं जतिन सिंह जी। ये स्काईमेट के सीईओ हैं, मौसम का प्रोडिक्शन देते हैं, है ना। और साल की शुरुआत में इन लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा मानसून रहे, मतलब जब ये फोरकास्ट देते हैं, आईएमडी ने भी, स्काईमेट ने भी कहा कि बहुत अच्छा मानसून रहने वाला है। और कुछ, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जून के महीने में चूंकि मानसून ने बहुत निराश किया, ऑलमोस्ट 20% डेफिसिट है जून के महीने में, सरकार ने एक प्रिकॉशन के तौर पे ये स्टेप उठाया है कि ऐसा ना हो कि मानसून आगे फेल हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो और दिक्कत बढ़ जाए। उसको देखते हुए सरकार ने प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाई है। आप जरा इन लोगों को भरोसा दीजिए कि जून का महीना अगर खराब गया भी तो जुलाई अगस्त का महीना अच्छा रहने वाला है, डोंट वरी, अच्छा प्रोडक्शन होगा। सर देखिए, अगर अब हम लोग का इनिशियल फोरकास्ट देखेंगे, हमने बोला था जून खराब होगा,
जून -19 है, बट जून में स्विंग बहुत होता है. जून इज़ ओनली 17% ऑफ द मानसून. जून इज़ मोर साइकोलॉजिकल देन एक्चुअल. आपके जो 2 महीने हैं जहाँ पर अगर फेल कर जाती है मानसून तो उसका रिकवरी बहुत मुश्किल होती है. वो है जुलाई और अगस्त. अगस्त में 33% होता है, और जुलाई में 33% होता है, अगस्त में 29% होता है. दिस ईयर इज गोइंग टू बी इंसुन न्यूट्रल गोइंग टू लानिना ईयर, और एलिनो पीटर आउट कर रहा है. और आपका जो इंडियन ओशन है वो भी आपको सपोर्ट ही कर रहा है. आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज आई थिंक IOT इज पॉजिटिव. सो दिस मानसून इज नॉट गोना throw too many challenges. Last year we had said that monsoon will be below normal. We had said -6. It was -6. Last year's monsoon is poor. जून के लिए -20% आपने नहीं बताया था, जहाँ तक मुझे सर याद वो है. करना तो मैं भगवान ना होता. नहीं, भगवान नहीं. 20 का प्लस माइनस भी कुछ हो जाता है. 20% तो थोड़ा सरप्राइज किया है आप लोगों को भी. ज़्यादा ही सर सरप्राइज है, पर मुझे याद है 2015 में भी -17 हुआ था, मतलब इन वन ऑफ द इयर्स. बट इट्स ओके. अब देखिएगा ना, अब बारिश तो शुरू हो गई. पूरे इंडिया में बारिश हो रही है. बॉम्बे में, जब बॉम्बे दिल्ली में एक साथ बारिश होनी शुरू हो जाती है, यू कैन एज्यूम दैट मानसून इज इन अ वेरी हेल्दी पोजीशन. गेहूं की और चावल की खेती नहीं होती, दिक्कत ये है. नहीं नहीं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द ज्योग्राफिक एक्सटेंट. इफ इट इज रेनिंग इन बॉम्बे एंड दिल्ली एट द सेम टाइम, दैट मीन्स द मानसून regime it has spread. एंड दो चीज़ होती है, ज्योग्राफिकल स्प्रेड और टाइमलीनेस, कि आपका लो प्रेशर बनेगा और वो MP की तरफ जाएगा, वो थोड़ा साउथ में जाएगा, थोड़ा सेंट्रल ईस्ट, सेंट्रल में जाएगा, सेंट्रल ईस्ट में जाएगा. ये स्प्रेड चलता रहेगा ऑल द वे डाउन टू सितंबर. When we talk about monsoon, we want this whole cycle to start. The Bay of Bengal and Arabian Sea interacting, वो लो प्रेशर बनेगा, बारिश होगी, गैप आएगा, फिर लो प्रेशर बनेगा. Now all that is dependent on the basically अगर ENSO अगर वहाँ पर नॉर्मल हो जाता है या वो ठंडा हो जाता है, तो आपकी विंड जो होती है सिर्फ स्ट्रॉन्ग हो आती है. अगर वो गर्म होता है लाइक लास्ट ईयर, तो ये वीक हो जाता है. सो आई डोंट सी दिस मानसून हैविंग टू मेनी चैलेंजेस. If there is a risk in this monsoon, if there is a risk, it is only of excess, not of deficit. ठीक है, ये आपने अच्छी बात कही. अब मैं, चूंकि मानसून बहुत क्रूशियल है और मानसून को लेकर ही बाकी के पॉलिसी डिसीजन हो रहे हैं. जुलाई और अगस्त का महीना खरीफ सोइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिल्कुल. और जुलाई में जो टोटल 4 महीने का हमारा मानसून का सीजन होता है, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जुलाई महीने का होता है. मेरे ख्याल से 33% के आसपास कंट्रीब्यूशन जुलाई महीने का है. बारिश एक्सेस हो जाए, ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन मानसून का अच्छा होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छा होने के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन ये बहुत बेहतर होना चाहिए, तभी आपकी खेती अच्छी होती है. अगर मान लीजिए मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में बहुत एक्सेस रेन हो जाए, तो अगर और डेटा में आपको दिख जाए कि भाई इस सीजन में इतनी बारिश हुई, उसका कोई फ़र्क नहीं जब तक कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन ना हो. तो आप जरा बताइए कि जुलाई अगस्त का महीना बारिश के वितरण के लिहाज से, डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से कैसा रहने वाला है? सर देखिए, क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है वो है that the averages have gone down a little, but the number of rainy days has also gone down significantly. Okay, that means there are dry and wet phases. This is the climate change impact. It is not now. इसका मतलब ये हिस्टोरिकल लास्ट 30 साल में अब ये पैटर्न देखना शुरू देखेगा. से अगर मैं 2000 से 2020 का देख लूँ और 1980 to 2000 देख लूँ, तो that is one big change that has happened. I would assume that this monsoon is no exception to that. Now, when will it come? How long the dry days will be? Nobody really knows. The only thing I can tell you is I tweet 15 days forecast every day. Just look at that as a guide. The IMD publishes now 45 days का 1 month का forecast. उसमें ज़्यादा fidelity 15 दिन के आगे रहती नहीं है. Right. ठीक है, तो आपको उस uncertainty को bear करना पड़ेगा. But I can only take the risk. I can only put a rider on this. I don't see any. So last year monsoon was it was El Nino year. It was supposed to be below normal. देखिए monsoon अपने power से भी कभी-कभी dry season में बारिश दे देता है, जो last year हुई थी. Right. तो उसमें अचानक बहुत बारिश हुई और फिर एक dry phase आ गया. इस साल उसको disrupt करने की चीज़ें बहुत सारी नहीं है. नहीं. तो वो जो जो आप बोल रहे हैं ना, uneven distribution of rainfall is both in time and space. Okay. The climate change suggests that is going to happen statistically. I don't have any dynamical evidence for it, but the things that can cause it to happen, the probability of those factors is lower this year. ये देखिए, जतिन जी ने बहुत बढ़िया बात कही है. तो आप ये समझ जाइए कि एक लाइन में अगर मैं इनको बहुत ही डिकोड करूं, तो मानसून, खराब मानसून की आशंका से जो लोग गेहूं का स्टॉक कर रहे हैं वो ना करें. जतिन जी कह रहे हैं मानसून अच्छा रहने वाला है, तो आप फंस ना जाएं, वो आप ध्यान रखें इस बात का. मृत्युंजय, इफ आई वर टू जस्ट आस्क वन मोर थिंग, हम लोग वीट कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं.
जितना मानसून मैटर करता है उतना ही हीट ऑफ फेब्रुअरी मैटर करता है. exactly. सो अगर अपना मानसून अच्छा हो भी गया, फेब्रुअरी गर्म हो गया, हमारी यील्ड फिर गिर जाएगी. सो आई थिंक व्हाट इज क्रिटिकल एंड व्हाट मिस्टर सिंह कैन एक्चुअली एनलाइटन द ऑडियंस इज 1 डिग्री सेल्सियस फेब्रुअरी के किस हफ्ते में बढ़ेगा, कौन सी स्टेट मोस्ट वल्नरेबल है. हम लोग क्योंकि ये स्टडी करते हैं, ये आंसर लिटरेचर में है ही नहीं. है ही नहीं, you can't do आई it. मीन अगर हमको यही नहीं पता पंजाब में कितनी यील्ड नीचे गिरी क्योंकि टेम्परेचर फेब्रुअरी मार्च में बढ़ गया, हाउ कैन वी प्रिडिक्ट यील्ड्स? I see, think उसका monsoon- आंसर ये भी है that since we are talking climate and vulnerability, हमें ये भी देखना है कि हम किस प्रकार से उसको आने वाले सालों में कैसे हम प्रिपेयर हुए एज अ कंट्री. वी टॉक अबाउट हीट रेजिस्टेंट वेराइटीज़, वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स. आज की पॉलिसीज़ देखते हुए गवर्नमेंट की, will a private sector come forward for any investment? Processors हमारे सामने आज they are already telling their cues on how they are bearing the year. So long-term perspective say it becomes also very important that India gets ready so that there are ample investments, incentives, long-term policies. ये बहुत बड़ी हीट वेव पे सर बड़ा अच्छा सवाल श्वेता जी ने पूछा है कि ये जो कह रही हैं कि कई बार अब मस्टर्ड में आप देख लीजिए, मस्टर्ड का पहले फोरकास्ट आया कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा, दाम बहुत नीचे थे. बाद में ये कहा गया कि हीट वेव की वजह से यील्ड कम हो गई, प्रोडक्शन कम हो गया, फिर प्राइसेस शूट अप हो गए. तो उस पर सर क्या कमेंट है आपका? देखिए, ये जो डिसरप्शन है आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से, मॉनसून का डिसरप्शन को मैप अच्छी तरीके से किया गया. जो विंटर सीजन है ना आपका, फ्रॉम से अक्टूबर टू अप्रैल, एक तो उसका सीजन फोरकास्ट चलता नहीं है. Okay, there is no way that you can get a signal. And now we know that there are two risks. There is heat and there is also unseasonal rainfall. Okay, and if monsoon has become unstable over the last 20 years, I can see in my own lifetime that over the last 10 years, Rabi has become unstable. You are always looking at spike in March. इस साल actually हुआ नहीं, इसका जो warm season है वो late में आया है. आपकी summer का onset इस साल late है actually. बट और आपको अनसीजनल का भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है उतना. अनसीजनल रेनफॉल इस साल हुई नहीं, लास्ट ईयर हो गई थी कई. एंड दीज आर नॉट एक्सक्लूसिव रिस्क. इन अ सीजन यू कैन गेट बोथ. आपकी गर्मी भी हो गई और बिकॉज ऑफ द गर्मी आपके थंडरस्टॉर्म भी आपके बहुत स्ट्रांग हो गए मार्च अप्रैल तक. ठीक है. सो एंड द फैक्ट इज दैट यू हैव टू, दैट इज वेयर आई थिंक द टाइम हैज कम फॉर समथिंग लाइक वेदर इंश्योरेंस and weather derivatives. It is something that you cannot forecast for. So you can kind of bet against it or for it and try to live with it. Of course, there are financial instruments, and then you have to have varietal changes and irrigation patterns and forecasts and warnings and those things. Okay, fine sir. ये आंसर है. अब राजू जी आप जरा बताइए सर, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आप थोड़ा लेट जुड़े हैं हमारे साथ, कि व्हीट सप्लाई चेन में मतलब अब देखिए, मतलब इस डिबेट में अब तक ये बात क्लियर नहीं हुई है कि हमारे पास गेहूं का ज़्यादा स्टॉक है या कम स्टॉक है. इसको लेकर बहुत डिबेट है. कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टॉक है नहीं और शॉर्टेज है इसलिए दाम बढ़ रहे हैं और इसलिए सरकार को इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं. कुछ लोगों का ये कहना है कि फार्मर के पास 15-20% का स्टॉक पड़ा हुआ है और वो प्राइस राइज का वेट कर रहे हैं. सप्लाई चेन मैनेजमेंट को आप समझते हैं, जानते हैं. सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कहाँ पर कोई दिक्कत है जिसकी वजह से एक्चुअल जो पिक्चर है वो सामने नहीं आ पा रही है? So thank you so much and my apologies for the delay first of all. So मुझे ये लगता है दो चीज़ें हैं. पहली चीज़ ये है कि आपकी सप्लाई चेन का जो प्रॉब्लम है उसकी ओरिजिन कहाँ पे है. उसकी ओरिजिन है लो प्रोडक्टिविटी. वी आर सिटिंग एट समथिंग लाइक 3.6 टन्स, जबकि हमें कम से कम 6 टन के ऊपर प्रोडक्टिविटी हमारी होनी चाहिए. कम से कम 6 टन होनी चाहिए. उसका इज इट वेरी डिफिकल्ट टू अचीव? नॉट रियली. There are very distinct actions that need to be taken. एक बार आप वो एड्रेस कर देते हैं, we will definitely be sitting on a significant surplus. आज की डेट में कितना स्टॉक है कितना नहीं है वो एक ब्लैक बॉक्स बना दिया गया है, in my opinion, because the government does not want to reduce its own estimate, whereas trade very clearly sees that that is exactly not the number which is going to come out as a production and as a stock. So stocks are definitely, in my opinion, lower than what is being talked about right now. Still lower, and that is possibly triggering some kind of a opportunity for people to look at a price hike. Obviously, the global demand also has been significant, and I think that also is bringing about some pressure
on the prices within India. Now, the question was whether you would import or export. I think let's understand clearly. Agriculture is a political subject. It's not a commodity subject. In a political subject, there are elections due later this year in many states. You can't allow food prices to go up significantly. So, whether you call it a shadow boxing or you call it a real threat that the imports may happen, it may happen, really. It may happen, but it should be happen or not? That's a difficult question because you don't know what is actually within you today. हमें स्टॉक से नहीं मालूम है किसी को भी आज की डेट में क्या है. जिससे बात करो उसके पास एक अलग नंबर है. मेरे पास नंबर है. आपके पास कौन सा नंबर है? मैंने तीन महीने पहले प्रोजेक्ट किया था कि ये काफी कम होने वाला है स्टॉक. So मैंने जो ईयर एंड स्टॉक देखा था उस समय, एंडिंग स्टॉक मेरा 9.36 मिलियन मेट्रिक टन का था. That was basis the production of about 101.52 मिलियन, जिसको अभी 112 हम बोल रहे हैं. तो वो हमने करीब 101 था, बट आई एज्यूम कि हमारे को जो एक्स्ट्रा पीरियड मिला वीट में, it would have gone up by another 4-5 million tons. So let's say about 106-108 मिलियन टन उसके आसपास में कहीं पे प्रोडक्शन होना चाहिए. But again, I think we will have to decipher, we will have to find a way out of this black box, because ये अगर repeatedly होता रहा तो बहुत uncertainty cause करेगा. But the core is basically we need to raise our productivity. अगर एक बार आप वो बढ़ा देंगे तो ये डिस्कशन बेमानी हो जाएंगे सारे जो अभी हो रहे हैं. प्रोडक्टिविटी वाली बात ये बहुत महत्वपूर्ण है. लेकिन जोशी सर, आप जरा बताइए, मतलब कमाल है, मतलब बहुत लंबा वक्त नहीं बीता, आप लोग सब मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं. कुछ ही साल पहले की बात है जब गेहूं चावल के उत्पादन को लेकर हमारी चिंता थी. सरकार को एक बर्डन लगता था कि भाई आपको प्रोक्यूरमेंट करना है, और जिस तरह का फार्मर एजिटेशन हुआ, और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि भाई क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए. हम एडिबल ऑयल का इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर फोकस बढ़ना चाहिए, पल्सेस के ऊपर फोकस बढ़ना चाहिए, ग्रेन से शिफ्ट होना चाहिए. अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि गेहूं का ज़्यादा पैदावार करें. एक वक्त में सुप्रीम कोर्ट को फटकार तक लगानी पड़ी थी कि भाई गेहूं बर्बाद हो रहा है, फ्री में बांट दो, मतलब रखने की जगह नहीं थी एफसीआई के पास. सडनली ये सिचुएशन बदल गया, चेंज हो गया. आपको लगता है कि वाकई अभी हमारा जो व्हीट का प्रोडक्शन है उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है और बढ़ना चाहिए? और अगर बढ़ना चाहिए तो फिर लैंड कहाँ से है? फिर जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात हम कर रहे हैं उसका क्या होगा? ये तो भाई क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी सब आ गया एक साथ. तो मैं तो सुन रहा था, आप देखिए आपके विचार, इंडस्ट्री के विचार, एक वैज्ञानिक के विचार, एक पॉलिसी वाले के विचार, एक किसान के विचार, आम जनता के विचार अलग होते हैं, सबके अलग होते हैं, सबको एक साथ लाना है. अभी इन्होंने ये कहा कि बढ़ाएं कि न बढ़ाएं. आप 10 साल पहले ऐसा कहते थे गेहूं मत उगाओ. आप 10 साल का इतिहास देख लो. 10 साल में 10 ऑस्ट्रेलिया पैदा कर दिया. आप ऑस्ट्रेलिया को एक ऑस्ट्रेलिया दे दीजिए. अभी तो अफगानिस्तान से हारे, पता नहीं किससे हार जाएंगे. भाई साहब, ये यथार्थ देखना है हमें. यथार्थ क्या है? यथार्थ ये है कि हम हर साल 1 ऑस्ट्रेलिया 2 ऑस्ट्रेलिया पैदा करते जा रहे हैं. फिर भी हम देखिए क्या हालत थी 20 साल पहले हम लोग की, 30 साल पहले. मैं यंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, मुझे पता है क्या हाल था. साइकिल से जाता था, फ्लाइट में नहीं बैठ सकता था, एसी का टिकट मिल जाए हालत खराब थी. जमाना भी देखिए, और हम जो भी बात कर रहे हैं ना, ये 100 साल पुराने आप रिसर्च पेपर देख लीजिए. कब हार्वर्ड ने लिखा था व्हीट इज ए गैम्बल ऑफ टेम्परेचर. पढ़िए वो पेपर. ये सब चुनौतियां पुरानी है, नई नहीं है. नया क्या हुआ है? झटका. जैसा अभी हमारे मानिंद लोगों ने बताया बड़े सुंदर तरीके से, अब झटके से हो रहा है. अभी आपने देखा बारिश हो गई, क्या हालत हो गई लोगों की. लेकिन झटका बर्दाश्त करने के लिए हमारे दुनिया में, अब आप रिसर्च देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, बिग डेटा का ज़माना है, रोबोटिक्स का ज़माना है. हम क्यों ये सब बात कर रहे हैं? पहले तो पता ही नहीं चलता था. अब तो फोटो ले लो, रिकॉर्ड कर लो, तो क्यों नहीं सैटेलाइट से हम आरोग्य सेतु बना देते हैं. हमारे पास आरोग्य सेतु नहीं है, वो कोविड के लिए. हमारा डेटा सिस्टम कमजोर है या बिखरा हुआ है, इसलिए शायद हम लोग ये विवाद कर रहे हैं कि सरकार ये कह रही है, हम ये कह रहे हैं, किसान ये कह रहा है. वो उसको पहले ठीक करिए. सोर्स पे जाना है, डेटा. जो आरोग्य सेतु हो सकता है, सारी दुनिया में आप जाके देखिए, बड़े देशों में एक एक खेत को मैप करते हैं.
एक एक खेत को, बिल्कुल गड़बड़ डेटा नहीं आता है, जानवरों को मैप कर देते हैं, किसी भी हमारे यहाँ भी हो सकता है, प्रतिभा की कमी है क्या, उसको कर लीजिए, फिर ये आप निश्चित करेंगे। देखिए इंपोर्ट करें, अरे क्यों करें, एक लॉबी बोली क्यों करें, किसान मर जाएगा, आप कहते हैं नहीं इंडस्ट्री मर रही है। देखिए अभी 2 महीने पहले क्या हुआ था, आईसीआर के परिसर में नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस से गोष्ठी हुई थी, भारत को निरंतर कैसे एक निर्यातक के रूप में स्थापित करें, क्योंकि अभी क्या है, हमने एक्सपोर्ट झटके से किया फिर रोक दिया, पहले कभी नहीं करते थे थोड़ा बहुत, और G7 G20 वाले कह रहे अरे भारत ने अत्याचार कर दिया पूरे विश्व पे, क्योंकि यूक्रेन था। अरे जब हम एक्सपोर्टर थे ही नहीं और रोक दिया तो तुम क्यों हल्ला कर रहे हो भाई, क्योंकि विश्व की परिस्थितियां बदल चुकी हैं, मैंने वो पहले भी कहा था। तो अभी हमने वहां गोष्ठी करी कैसे इसको बनाए एक टिकाऊ निर्यातक, यहां बात हो रही है हम कैसे इसको आयात करें, इंपोर्ट करें। तो एक्चुअली सच्चाई क्या है, किसी भी दुनिया में आप कहीं मार्केट में जाइए, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट साथ साथ चलता है, साथ साथ चलता है। आपको ये निश्चित करना है आपको क्या इंपोर्ट करना है और क्या एक्सपोर्ट करना है। देश के किसान भी नुकसान हो, इंडस्ट्री को भी नुकसान नहीं हो, इंडस्ट्री नहीं रहेगी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, मार्केट खत्म हो जाएगा, शेयर बाजार बहुत कुछ होगा। तो पहले समग्र रूप से डेटा को हम ठीक करें, और मेरे ख्याल में हमें भारत सरकार पे ट्रस्ट करना चाहिए, उनका डेटा गलत नहीं ठीक है। बात है, आप कह रहे हैं डेटा सिस्टम मजबूत करना चाहिए लेकिन ट्रस्ट भी करना चाहिए। जी हाँ। थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, जब मजबूत नहीं है डेटा तो फिर ट्रस्ट कैसे नहीं करें? नहीं, देखिए ट्रस्ट का क्या मतलब है, आपस में ऐसा नहीं है, आप कह रहे हैं आपका डेटा करेक्ट है, वो कह रहे हैं हमारा डेटा करेक्ट, साइंटिस्ट कह रहे हैं हमारा डेटा करेक्ट है। सच्चाई देखिए 15 से 20% किसान ने रोका हुआ है, सच मैंने खुद सर्वे किया, कहाँ गिरा है, पंजाब में 8-8, 9-9 टन यील्ड आई है, हमने देखा अपने खेत में जाके, खुद किसानों खेत में। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं कम हुआ जहाँ होल्डिंग हो रही है, ठीक बात है। ईस्टर्न में भी थोड़ा, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि Right. बहुत गिरा है, ऐसी बात नहीं है, वो होल्ड करके होल्ड रखे। कर थैंक सकते यू। हैं। ठीक है, अब श्वेता जी आप बताइए, जब हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो भी जाए, अब देखिए ये बात ठीक है कि प्रोडक्टिविटी के मामले में हम बहुत पीछे हैं, सिर्फ व्हीट में नहीं बाकी क्रॉप में भी आप देख लीजिए। ब्राज़ील, अभी मैं ब्राज़ील के एक डेलीगेशन का इंटरव्यू कर रहा था, ब्राज़ील का जो सोया प्रोडक्टिविटी है वो हमसे 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। तो उस लिहाज से क्या व्हीट में इस बात की गुंजाइश है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर, बेशक हम लैंड का डाइवर्जन और ना करें व्हीट में, लेकिन यील्ड बढ़ाकर हम उसको कंपनसेट कर पाएंगे? आप तो रिसर्च करते रहती हैं, बताइए। आई मीन आई विल आंसर इट बाय सेइंग हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, लैंड अपने पास है नहीं, वी आर लूजिंग लैंड टू क्लाइमेट चेंज, सिल्टिंग एंड अदर फैक्टर्स। क्रॉपिंग इंटेंसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बट वीट जैसी क्रॉप है, हमें शॉर्टर ड्यूरेशन में हायर यील्ड लेनी ही पड़ेगी। वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। हमारी कंजम्पशन एज पहले भी बात हुई कि बेकरी इंडस्ट्री डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। NSSO के रीसेंट नंबर्स आए हैं, उसके हिसाब से इंडिविजुअल कंज्यूमर की कंजम्पशन ऑफ उसके लिए वीट क्या करना चाहिए, यील्ड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ बताइए सुझाव। सो 2 क्लियर जो लो हैंगिंग हमको दिखता है जो अभी हम पढ़ते हैं, एक है एक्सटेंशन सिस्टम और एक है बीज। बीज हीट टॉलरेंट होना चाहिए, सबसे पहले तो वही। दूसरा, जैसे हमारे पास ये लास्ट के 2 सालों में हमने कई स्टेट्स के साथ एक्सटेंशन सिस्टम के साथ काम किया है कि अगर हीट बढ़ती है तो कई सारी एड हॉक एक्सटेंशन एडवाइजरी जाती है कि इरिगेशन बढ़ा दें, एक सर्टन स्प्रेस कर दें, उसकी वजह से बहुत लो हैंगिंग बेनिफिट्स आ जाते हैं। बट ये लो हैंगिंग है, अनलेस कंट्री ये इस्टेब्लिश कर पाए कि हमारी वल्नरेबिलिटी कितनी ज़्यादा है टू क्लाइमेट चेंज, दैट इज़ वन। सेकेंड, हमारी बहुत सारी वैल्यू चेन एंड लॉजिस्टिक्स स्मूथ नहीं है, हमारे बहुत सारे लॉसेज हम अलॉन्ग द वैल्यू चेन भी होते हैं। ये भी लो हैंगिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? So I think अगर हम देखें तो वी डोंट वांट टू कंपेयर आवरसेल्व्स विद समबडी लाइक अ यूके जहाँ पे 10 टन पे बैठे हैं, क्योंकि उनके पास लॉन्गर ड्यूरेशन है। हम लोग अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं मैक्सिको जैसी कंट्री से जहाँ 6 टन पे ऑलरेडी बैठे हैं। 6 टन पे पहुँच के लिए 4 या 5 मंत्र आपके पास में। सबसे पहला मंत्र है सॉइल। आई थिंक योर सॉइल डिटोरेशन हैज़ रीच्ड अ लेवल जहाँ पे उसकी प्रोडक्टिविटी इज बिकम अ क्वेश्चन मार्क, सीरियस क्वेश्चन मार्क। सेकेंड इशू जो सबसे बड़ा आज की डेट में आ रहा है, एटलीस्ट आपका जो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वगैरह है, 20 to 50% की ईल्ड लॉसेस बिकॉज ऑफ वीड्स। जो वीड लग जाते हैं, खरपतवार जो लग रहे हैं, उनकी वजह से इतना बड़ा है। और खरपतवार जो है अभी केमिकल से रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस हैं उन पर रेजिस्टेंस होते जा रहे हैं। सो इफ़ यू इंट्रोड्यूस न्यूअर मोड ऑफ एक्शन herbicides and couple that up with lot of stewardship
एक्सटेंशन जैसा श्वेता जी ने बोला, उसको स्टीवर्डशिप के साथ आप क्लब करें, आप देखेंगे आपको इमीडिएट जंप मिलेगा प्रोडक्टिविटी में, इमीडिएट जंप मिलेगा, उसमें देर लगने वाली की काम कोई है नहीं। थर्ड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ डू यू सीड की उन्होंने बात की, ऐसा सीड हो सकता है कि वो टर्मिनल हीट को टॉलरेट कर पाए, हीट टॉलरेंट। वो सीड का क्या हमें हम डेवलप कर सकते हैं या हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा? है ऑलरेडी है सिस्टम में, अभी आना, आई मीन वो थोड़ा रिसर्च सिस्टम हमारा चल रहा है, उसकी अपनी एक गति है, वो उसकी गति हमारी गति से मैच नहीं खाती, पर तेज करिए ना सर गति को, तो इतना वो गति हंगामा जब मचा हुआ है वीट तेज पे, हो रही है, सो आई थिंक गति स्लो रहेगी कैसे काम चलेगा? ऑलरेडी कुछ सीट्स इंट्रोड्यूस होने वाले हैं इसी साल, जहाँ तक मुझे मालूम है। सर सीट का ऐसा है सर, अपना सीट का जो बिल है आपकी सीट बिल पार्लियामेंट्री नहीं आया, कमेटी ने वो तो- ओके करने के बाद सर टेबल नहीं हो रहा 5 साल से। दैट इज आवर सीरियसनेस ऑन सीट्स। नहीं, पर आई एम सेइंग दैट लास्ट 2017 में इंटरवेंशन था, वेयर एक्चुअली लाइक यू नो पार्लियामेंट्री कमेटी ने ओके कर दिया और टेबल ही नहीं हो रहा 5 साल से। सो अभी सीट की जब बेसिस हमारा पॉलिसी, सी अगेन कमिंग बैक, द पॉलिसी इज अ चैलेंज सर। नो फारिक साहब, वहाँ पे मैं आप बताता हूँ आपको, तीसरी चीज़ जो आपकी है, आपकी इनपुट यूज एफिशिएंसी इज इन फॉर अ टॉस। व्हाई? बिकॉज आप खटाखट उसमें डालते चले जा रहे हैं खाद, आजकल खटाखट से बड़ा है, खटाखट इतना इज न्यू चलो। फटाफट। खटाखट ही तो हो रहे हैं सर, खटाखट इसी ज्यादा हो रहा है, स्टॉक लिमिट, इंपोर्ट बैन, खटाखट इंपोर्ट भी हो जाएगा। उसमें हो क्या रहा है कि आपकी आज की डेट में जितना आप न्यूट्रिशन डाल रहे हैं, वो कितना क्रॉप को मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुका है। तो उसको जब तक आप करेक्ट नहीं करेंगे, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस को जब तक करेक्ट नहीं करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी का, आपके पास जेनेटिक प्रोडक्टिविटी है, आपके सीड में भी जेनेटिक प्रोडक्टिविटी है, बट आपकी एग्रोनॉमिक एक्सप्रेशन इज पुअर बिकॉज ऑफ दीज लिमिटिंग फैक्टर्स। वन, सॉइल कंडीशन, क्योंकि सॉइल में जो स्ट्रक्चर हो गया है बिकॉज ऑफ पैडी व्हीट रोटेशन, ये कॉम्पैक्शन आ गया है, उसके अंदर उसका ह्यूमस खत्म हो गया है, so you have got to rebuild almost the soil, number one. Number two, nutritional balance, क्योंकि आज की डेट में आप यूरिया इतना सब्सिडाइज है कि वो किसान कहता है खाद के नाम पे यूरिया डाल देता है, चलो अच्छा खाद डालनी है, एक कट्टा और डाल दो। सो वो जो रेशियो आपका 4:3:1 का होना चाहिए, वो आज की डेट में 9:2:1 का है। वो ये जो आप कह रहे हैं, इस पे अलग एक डिबेट हो सकता है कि भाई वो उसका आसान है, कोई ऐसा नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है पता करना कि क्यों कैसे बढ़ सकती है। जिसमें रॉकेट साइंस नहीं होता उसी में ज्यादा दिक्कत आती है। वो पॉलिसी का इशू है, पॉलिसी को आप एड्रेस कर लीजिए अपने एंड पे, गेट न्यूट्रिशनल बैलेंस एस्टेब्लिश्ड। नंबर 3, मेक श्योर दैट योर herbicides आर यूज्ड प्रॉपर्ली एंड दे आर यूज्ड इन अ शटल। एक ही चीज को बार बार यूज करेंगे, रेजिस्टेंस बिल्डअप हो जाएगी, आप उससे भी हाथ धो दो। बिल्कुल सर, इस पर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? We need to understand that we are continuously taking the production from the nature. What we are giving it back. So the answer to this lies in regenerative agriculture. Soil degradation is continuously happening. Usko rokna hai. We will have to give back to the nature. Climate smart agriculture जो हमारी कंपनी ITC उसको फॉलो कर रही है और उसको प्रोपोगेट कर रही है, उसके रिजल्ट्स हमने देखे हैं यूपी में, बिहार में, जहाँ पर 16 से 18% यील्ड बढ़ी है फार्मर्स की और कंटिन्यूसली 2 साल बढ़ी है। उसका आंसर इस चीज़ में लाई करता है कि जो उससे पहले वाली जो क्रॉप है पैडी की, उसका जो सरफेस सीडिंग आपने करी है, डायरेक्ट सीडेड राइस लगाया है, जिससे कि उसकी हार्वेस्टिंग टाइम से हो। वीट की सोइंग अगर टाइम से होगी तो उसको अगर 90-120 डेज अगर उसको मिलेंगे, उसको ठंड सही मिलेगी, तो आपका जो बीज है उसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ के आएगी, यील्ड्स विल बी बेटर। दैट इज द आंसर। इसके लिए वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट सारी चीज़ें करे, प्राइवेट सेक्टर को उसमें साथ देना पड़ेगा। और बहुत सारी कंपनीज को इंस्टेड ऑफ कीप सेइंग कि भाई हम इंपोर्ट करेंगे और हम खरीद लेंगे, उसमें हम फार्मिंग में हम क्या कर रहे हैं उसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में, सबको, क्योंकि उससे जो हमारा टॉपिक है कि वीट फॉर पीस एंड मेकिंग इंडिया सेल्फ सफिशिएंट, हम शॉर्ट टर्म अप्रोच को देख रहे हैं कि आज हम इसका इलाज निकाल लें, लॉन्ग टर्म में हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कैसे बनाएं, हाई यील्डिंग वैरायटीज, हीट रेजिस्टेंट वैरायटीज कैसे हम प्रोपोगेट करें, फार्मर उसको अडॉप्ट कैसे करे। सस्टेनेबल सॉल्यूशन चाहिए। एक हम खुद नी जर्क रिएक्शन करना चाहते हैं जैसा गवर्नमेंट करती है,
हम खुद चाह रहे हैं कि आज इंपोर्ट करके आज का देखें, हमारे बच्चे आने वाली जनरेशंस क्या खाएंगी उसकी हमें परवाह नहीं है. वी वांट टू बिकम डिपेंडेंट ऑन सम अदर कंट्री बाय कीप इंपोर्टिंग. तो इंपोर्ट पर ठीक है, ये हाँ, छोटा सा एक हाँ, आपने वेस्टेज पर बात करना चाह रहे थे, बहुत क्योंकि important एक है तो ये। ठीक है कि आप यील्ड बढ़ा लें, ये एक है, वेस्टेज भी एक बड़ा बड़ा कंपोनेंट है, तो वो उस पर क्या मतलब ठीक है आप? सी हमने यील्ड की बात की, हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की, हमने फ्यूचर आत्मनिर्भर भारत की बात की. आपको मैं कुछ डेटा देता हूँ विच इज वेरी शॉकिंग. FAO says that between 10 to 20% of global wheat produced is wasted post harvest. आप वो नंबर पे जब जाएंगे, right, that number comes to close to 80 million to 120 million metric tons, depending on which survey you want to take. In a developed country like US or Australia, that loss is around 5%. Developing country like India, it is assumed to be between 8 to 15%. And for underdeveloped country in Africa, sub-Saharan Africa and all that, it is from 18 to 23%. Hindustan पे आते हैं 16 million metric ton of wheat gets wasted. Right? Sir, गलत है. sir, I am saying FAO ने sir ना percentage Mic दिया रखा है, जाए. उसको मैंने compare किया है. Sir, Please, we can please give debate mic on the to sir data तो. Averages are always misleading, no? हाँ, so what I am saying is that when FAO says that in developing country like India, चलिए sir 16 नहीं होगा, 10 होगा. Sir 8 होगा. Sir है ही नहीं, आप कह रहे हैं वेस्टेज ही नहीं है सर. सर आपका अगर प्रोडक्शन 115 मिलियन मेट्रिक टन है, उसमें 8% भी पकड़ता हूं सर तो 9 मिलियन टन होता है जी. सर अगेन सर लेट मी कंप्लीट. आई एम सेइंग सर मैं तो सर आपका एफएओ का बेंचमार्क किया है, राइट. इनफैक्ट अगर आप देखेंगे सर आईसीआर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला सर 50,000 करोड़ का नुकसान होता है पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज के अंदर. सर तीन डेटा मैंने कोट किए हैं. Deepak ji, can I tell you one thing? जी. We used to talk about 8% loss in post-harvest in 1963 when Dr. Pansay of Planning Commission did just a survey. That even at the farmers level also this type of loss is not occurring. Sir, And when it comes to FCI, you talk about FCI, na? In FCI they are asking for gain in wheat. Sir, we can agree that FAO data is wrong, but again coming back to the important point, is wastage happening or not? You see, don't throw this picture numbers that 8% loss happening in wheat and all that. Sir, again, I'm saying IFPRI, FAO says globally 100 million metric ton का suboptimal use और optimal use हो रहा है. चलिए sir, no basis for that. Let's discard FAO also now. What I'm saying that sir, कहीं तो wastage हो रहा है. Do we take care of wastage or not? That is my question. Sir, it's a post-harvest loss, right? अभी अब, sir, I'll share you the research ना sir. FAO का आप क्वेश्चन कीजिएगा, right? I am saying that whether we agree कि waste को आपको prevent करना है कि नहीं करना. ये श्वेता जी कह रही हैं कि नाबार्ड की स्टडी है जिसमें लॉस और वेस्टेज दोनों 2.5 to 5%, मतलब आप हाँ 2.5 to 5%. हाँ नहीं हाँ, suboptimal uses losses, हाँ. Right. So, हाँ household. हाँ. Sir, I am not blaming anyone. Sir, I am saying sir 5 अगर % का भी अगर आंकड़ा लेते हैं मैडम, 112 पे 5% 6 मिलियन मेट्रिक टन होता है ना, आपका लॉस वही है. What I am saying is that कि आपका जो the idea what I am trying to say with this data ठीक है, मान लो 5% मान लिया अभी suppose, तो कैसे कम करें? हाँ. So now I believe that the lowest hanging fruit for all the people from the trade is can we augment, right, our logistics, right, hermetic way में irrigation use करके, storage को better improve करके, silos which are actually like I'm saying controlled environment silos, क्या हम ये सब कर सकते हैं? And this is where I believe like government has to come with incentive for the private sector to do all these investment. अच्छा बढ़िया, ये तो अच्छा बताया आपने. मतलब आप कह रहे हैं कि जो लॉस होता है वो कंपनसेट हो जाता है मिल की तरफ से. हाँ. अच्छा. Okay. Sir, idea is not. What I'm saying is that as a country, do we prevent loss, or we are saying that there is no food loss in this country? We are. Food losses are there, sir. Sir, we can have a small workshop on that. I'll quote all these datas and their methodology. FAO की एक methodology है. हाँ था. Yes. एक जमाने में था, बिल्कुल ठीक बात है. हाँ एक जमाने में बिल्कुल ठीक बात है. वो अब कम हो गया. Sure.
ठीक है, यस सर, वो ठीक है। 6 मिलियन बचा लेता हूँ सर। हमको ये जो बात है ना यील्ड बढ़ाने की, और सर कमिंग बैक टू दैट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, अगेन जो यील्ड का जो इशू है, व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक इंक्रीजिंग यील्ड्स, राइट नाउ दिस इज आई एम सेइंग दैट वी हैव टू rightly pointed out regenerative agriculture, and wheat is one very good example in which you can do no tilling agriculture. राइट। अच्छा जतिन जी, ये बहुत हम ये सारी डिबेट कर रहे हैं, इस सारी डिबेट का जो आप ये कहें कि जो पॉइंट है, मतलब जो मेन पॉइंट है वो फार्मर हैं, और फार्मर के बिना हम ये सारी डिबेट करने का हमारा कोई मतलब रहेगा नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि फार्मर को, जैसे अभी बहुत सारे सुझाव आए कि कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, यील्ड बढ़ानी है, फार्मर को मानसून के बारे में कैसे अवेयर किया जाए। अवेयर से मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे प्रयास आप लोग कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। IMD भी कर रहा है अपनी तरफ से, लेकिन फार्मर को ये अंदाज़ा ठीक से लग जाए कि वो जो खेती करने जा रहे हैं, है ना, जिस इलाके में फार्मर हैं, अगर उनको ये ठीक तरीके से सही वक्त पे एडवाइस मिल जाए कि इस बार मानसून का सिचुएशन उनके इलाके में ये होने वाला है, एकदम इसको और डिटेल में जाके पेनिट्रेशन होना चाहिए। ओवरऑल आउटलुक या ओवरऑल जो फोरकास्ट है वो तो ठीक है, लेकिन उनकी जगह में जहाँ वो खेती कर रहे हैं वहाँ पर रेन का डिस्ट्रीब्यूशन, मानसून का अराइवल किस तरह से हो सकता है, ये कैसे अवेयर किया जाए। ये देखिए, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये तो इम्प्रूव हो ही गया है। आपके सबसे सस्ते से सस्ते फ़ोन पे वेदर इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, विलेज लेवल पे इज़ अवेलेबल, 20 दिन का फोरकास्ट होता है, रोज़ अपडेट होता है। नहीं, विलेज लेवल पे किन का, आप लोगों का अवेलेबल है? सबका अवेलेबल है। वो ग्रिड साइज छोटा होता जा रहा है। ओके, आज से नहीं, सालों से। नहीं, उसमें दिक्कत ये आती है ना कि मैं किसको सही मानूं, वो बड़ा चैलेंज होता है। मैं बताऊं, सारे वेदर फोरकास्ट ना आपको आसपास ही मिलेंगे, सेम ही मिलेंगे, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक। तो सबसे पहले हुआ है। दूसरे, हमारे वेबसाइट और वीडियोस जो होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, मिलियंस में उसके व्यूज़ जाते हैं। तो फार्मर तो अब काफ़ी हद तक, इवन बिकॉज ऑफ द वे द इंटरनेट हैज़ इवॉल्व्ड, सेमी लिटरेसी इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। हमारा आप ऐप डाउनलोड करें, आप उससे पूछे दिल्ली में बारिश कब होगी, वो आपको बता देगा, गर्मी कितने दिन तक पड़ेगी वो आपको बता देगा, गूगल वाला जो वेदर होता है वो आपको बताया। तो आई थिंक टू अ ग्रेट एक्सटेंट दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। आई टेल यू द फ्रस्ट्रेशन इज कमिंग ऑन 2 थिंग्स। वन, कि एक टाइम फ्रेम के बियॉन्ड आप बता नहीं सकते। जितनी आप इंप्रूव करते आते हैं उतना आप ज़्यादा इंप्रूव करना आता है, और जितना आप इंप्रूव करना हो जाते हैं उसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ये तो मेरे पास ऑलरेडी है। You go back 20 years, I would have, and that change has happened. Farmers are effectively using the weather forecast to plan their activities quite well. Maharashtra probably is the most evolved because most of the horticultural crops are far more weather sensitive. They have far more technology doing that. But now I see कि Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, hills में भी काफ़ी awareness आ गई है, farmers से बात करिए। तो now the rest are problems that might not get solved in say 1 to 2 years because weather forecasting और climatology का भी जो technological evolution है to be able to look through a longer time frame takes, मतलब it's a flick of a coin. अच्छा, आपको लगता है कि थोड़ी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ वेदर फोरकास्ट में, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि फोरकास्ट कुछ था, हो कुछ गया, मतलब उस तरह से एक्यूरेसी मैच नहीं हो पा रहा। क्या उस फ्रंट पे आपको लगता है और टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे काम करने की ज़रूरत है, या उस मोर्चे पर आपको लगता है थोड़ा और हमें और इक्विप्ड होना पड़ेगा? सर, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग फोरकास्ट का पैसा नहीं देता है, उल्टा है प्रॉब्लम। बिना पैसे का एक्सपेरिमेंट चला रहे हैं। This whole human race has assumed that weather forecast is for free, तो जितना कम पैसा दोगे यही मिलेगा। आप मुझे महीने पैसे देंगे नहीं, सबको फ्री में चाहिए, तो आप इसी से जिए। मैंने तो वेदर फोरकास्ट पे एफर्ट मारना छोड़ दिया। पैसे ये लोग नहीं देते हैं क्या? कोई नहीं देता है, वो एड ड्रिवन होता है। अच्छा, अब हमें I will give credit, the only agency in this country, and I am the first weather entrepreneur, is Bharat Sarkar, who has given me money, state governments or central government or disaster management. People don't pay, people think it's for free, so you live with the free forecast. You want a better forecast, you pay for it. Then you will go to the free forecast कि ये तो free है, तो ठीक है। ठीक बात है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर थोड़ा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इनका वेदर सिस्टम और स्ट्रांग होगा। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा कम टाइम बचा है तो आप लोगों के लिए फ्लोर ओपन है। अगर आप लोगों में से कोई सवाल पूछना चाह रहे हो हमारे सारे एक्सपर्ट से, तो आप पूछ सकते हैं। यस सर, प्लीज़ इनको जरा माइक दीजिए। Just want to add what Jatin was saying. We are involved with the farmers. Actually, about 300,000 farmers are linked with us directly on one-to-one basis. We are working with them. We give them their village level forecast every day. Not only that, we also advise them what to sow, which variety is most suitable for their soil, and what activities are required to be done over a period of time. It goes to them automatically. Now, that gives us a lot of data from the farmers as well, because
You are linked with them on one-to-one basis through an app. My assessment about the stock is, actually, farmers are very smart today. Don't underestimate them. They are holding wheat. They keep on, we get hundreds of calls every day. रोक लूँ, बेच लूँ, क्या बढ़ेगा, क्या import होने वाला है. The farmers, don't underestimate farmers. There's a lot of stock. And then the second thing which is, I want to draw your attention is imports, which you are wanting to debate whether the imports should be there or not. In a neighboring country like Pakistan, what happened? Last year, there was atta shortage. You must have seen very disturbing visuals, people fighting for atta. The moment Pakistan government got the World Bank aid, the first thing it did was they imported wheat. And it coincided with the next wheat season. And the farmers are after them because they can't lift the wheat. So same thing shouldn't happen. And I think it's time for us to wait till the Kharif is going to be very good. The grain shortage will not be there. If there is some shortage in wheat, it will be filled up by paddy and rice. So I don't think, I'm stand with the farmers. बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है. मैं चाहता हूँ पीछे से कुछ लोग सवाल पूछें, क्योंकि आगे सब जवाब देने वाले बैठे हैं, एक्सपर्ट्स हैं. आप लोग अगर पूछेंगे तो थोड़ा और कुछ इनपुट, जो सवाल मैं नहीं पूछ पाया हूँ, आपके दिमाग में कुछ हो तो आप पूछिए प्लीज़. ये सब इंडस्ट्री के बड़े एक्सपर्ट हैं, एक साथ मिलेंगे नहीं आपको. हाँ, लगता है आप लोगों के जवाब से सब संतुष्ट हो गए. किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन है नहीं. और ये आईटीसी वालों से पूछिए. See, prices have increased. I don't see much of a price increase going forward. Government should come up with the OMSS policy very soon. Like they were able to manage the price last year, similar quantity is available with them. Exactly, we are standing at the same situation. The only risk with a buffer of 7.5 million ton is that we are due for a census. The data, simple data analysis says, basis 2011 census, if the buffer norm was 7.5, if the census has to happen today, the buffer will have to be revised to at least 12. So yes, by that logic, there is a shortage of 4.5 million ton. And then, yes, the OMSS quantity will reduce to 5 million ton. That, if you want to imply that into imports, so be it, but that is the fact. So prices can move up by maybe 50, 100 rupees from here, but government will be very active in taking actions, and they will intervene at regular intervals. Maybe, yes. See, year before last, we saw 32, and then the government started intervening because at that point of time, the fear was that how they will be able to procure. So they started on 1st February, and so they were able to buy. This year, that is not the concern, maybe 28 years. So I believe price, in case import is not open, right, we are looking at 32 again. मार्केट को डरा रहे हैं आप 32 रुपए बोल के. ऐसा मत करो. लोगों को रोटी खाने देंगे, नहीं खाने देंगे आप. No, see, actually, I don't trade, so I'm having no vested interest, but at the same time, the truth has to be told, right? And again, generally, I always have strong views whenever I have it, right? Tour mein aapne dekha hi hai, right? So I believe, like, it is very important that we ensure there is a sufficient supply. और मैं सरकार को ये आगाह कर रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 32 रुपए जाएगा, जिसके कारण लोग डरेंगे, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए. नहीं, ठीक है. अब ये तो खैर अब जो होगा वो देखा जाएगा. सूद साहब, आपका कुछ सर क्लोजिंग रिमार्क मैं चाहता हूँ कि आप जो डिबेट आपने सुना, क्या आपको लगता है कि वीट को लेकर जितना कंसर्न यहाँ पर दिखाया गया है वो वाकई एग्जिस्ट करता है, या ये सिर्फ 32 रुपए वाली बात सिर्फ ये दीपक जी की अपनी दिमाग की उपज है? देखिए, यहाँ कुछ चीज़ें सामने आईं. एक तो प्रोडक्टिविटी पर एम्फेसिस और रिसर्च पर, क्योंकि रिसर्च निगलेक्ट हुई है. वीट में शायद इतनी नहीं हुई, बाकी कई चीज़ों में. हमारी जो हीट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ पर रिसर्च है उसमें लैग रहा, क्योंकि जो पहली वैरायटीज़ पब्लिश हुई हैं वो 2-3 साल पहले ही हुई हैं. जितना क्लेम है कि बहुत ज़्यादा एरिया कवर हो चुका है, वो नहीं हुआ. वो शायद 15-20% ही है, 80 नहीं है. और वो बहुत जल्दी से बढ़ना होगा. और वीट की सीड प्रोडक्शन में लिमिटेशंस हैं,
सीड रेट इज़ वेरी हाई और साल में एक ही बार आप प्रोड्यूस कर सकते हो उसको। तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि पटनायक साहब हैं, इनसे मैं सहमत हूँ कि लॉसेस अब 1-2% ज़्यादा नहीं है, बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका है। वो भी रिकवर होकर स्वीपिंग होकर जानवर को खिला दिया जाता है और वो इतना बड़ा इशू नहीं रहा। उसको भी आप लॉस नहीं कह सकते क्योंकि कहीं ना और कहीं तीसरी battlefield में चीज़ ये use है हो रहा कि मेरा अपना विचार है कि इंपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर कंसेंसस देखा गया 2 मिलियन टन का डेल्टा या ज़्यादा कंसेंसस 5 या 6 का है, अगर 5 या 6 है, सरकार के पास वही 26.5 आया, तो वो कहाँ है? राइट। तो सिस्टम में कहाँ पर है? किसान के पास है या बहुत लोगों ने मिलकर यूपी में जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वहाँ अपना वेयर हाउस है, कॉस्ट गिनते नहीं, वो हर साल कुछ ना कुछ स्टॉक करते हैं, जैसा सोमनाथ जी ने पहले बताया था। तो इस तरह कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, मिलर के पास नहीं है, बिकॉज मिलर्स डोंट हैव मनी दैट मच ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वो निकलेगा कि इसमें यह है प्राइस एक्सपेक्टेशन कैसे किल करनी है। ओके। अगर लगे कि 32 ही हो जाएगी तो सब रखेंगे, सब रखेंगे। अगर रहेगा तो कि आप रखवाना चाह रहे हैं 27-28 दीपक जी होगा, 32 बोल के कह रहे हैं किसी को रिलीज मत 27-28 करो होगा तो स्टॉक। सारा स्टॉक फ्लश हो जाएगा। अच्छा। सरकार के पास चैलेंज ये है कि प्राइस एक्सपेक्टेशन को किल कैसे करना है, और उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अभी तक पता नहीं है बहुत लोगों को। अगर आप 2015 में जाएं, पल्सेस और शुगर के लिए क्या किया उन्होंने, तो रोंकड़े खड़े हो जाएंगे। कहाँ तक उन्होंने अरेस्ट करे, वेयर हाउस ओनर को पकड़ लिया जिसका कोई ताल्लुक नहीं था। पल्सेस के लिए 10 बजे नोटिफिकेशन हुई, 10:15 बजे कमांडोज पहुंच गए वेयर हाउस पर, कमांडोज विद द फूड इंस्पेक्टर महाराष्ट्र में। 50,000 टन का एक जहाज खड़ा था जो भी क्लियर नहीं हुआ था, इट हैज़ नॉट एंटर्ड इंडिया, वो सीज कर लिया और अखबार में दे दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ तक सरकार करेगी, पर बहुत ही हथकंडे उनके पास हैं, ये बहुत इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और अगर ये स्टॉक वाकई 5-6 मिलियन टन घूम रहा है जो कि कंसेंसस है, तो वो निकालना उनके लिए बहुत आसान है। आसान है, निकाल लेंगे मतलब। बिल्कुल। धन्यवाद। सर आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ यस सर, मेरा कहना ये है कि लास्ट ईयर से इस साल गेहूँ 30 लाख टन गेहूँ ज़्यादा पैदा हुआ, और लास्ट ईयर जो पॉलिसी गवर्नमेंट की रही उस पॉलिसी के हिसाब से गेहूँ हमको इंपोर्ट नहीं करना पड़ा था। तो इस बार भी 30 लाख टन गेहूँ, जो कम गेहूँ बता रहे कि हमारे पास वेबसाइट के पास गेहूँ 30 लाख टन 50 लाख टन गेहूँ कम है 40 लाख टन, वो ज़्यादा गेहूँ पैदा हुआ, वो गेहूँ देश के अंदर है, किसी के पास भी, चाहे वो फार्मर के पास है चाहे किसी के पास है, वो गेहूँ देश के अंदर है। इसलिए हमें इस साल जो है लास्ट तक इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और रेट जो है ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अभी तो आपने ओमेसेस लाया नहीं है, बिना ओमेसेस के गेहूँ जो है 2500-2600 रुपये पूरे देश में गेहूँ बिक रहा है। हाँ, ये ओमेसेस वाली बात बहुत इम्पोर्टेंट है। ओमेसेस अभी नहीं आया है। आप बताइए। हाँ नहीं ठीक है, अगर सरकार मतलब उसको शुरू कर दे ओपन मार्केट सेल को, तब क्या आपको लगता है कुछ प्रेशर आएगा मार्केट पे? नहीं, आई मीन ऑफ कोर्स, आई मीन OMSS सी जितना अभी सूद सर ने भी एग्जैक्टली यही कहा कि अगर हम बैलेंस शीट देखें तो उनकी सेम प्रोक्योरमेंट है, जितना पिछले साल था उतना ही है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 6 मिलियन टन के बीच में मार्केट में अवेलेबल तो है। एंड एज द ऑडियंस इज ऑल्सो वेरी करेक्टली सेड, देयर हैज़ टू बी अ परसेप्शन कि किस प्राइस तक सरकार टॉलरेट करेगी, जिसके बाद ये बिल्कुल इंस्पेक्टरात शुरू कर देगा। अब सरकार की एक विडंबना है कि वो ये प्राइस कभी डिक्लेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वी टॉक विद देम सो रेगुलरली। वी नो एग्रीकल्चर वाले चाहते हैं बढ़ते रहने दो, फूड और कंज्यूमर वाले कहते हैं नहीं कम करो। सो ये कंसेंसस तो कहीं भी नहीं है कि कितने इन्फ्लेशन रेट अचीव होएगा तो सरकार एक्शन लेगी। ये नीजक है, ये नीजक रहेगा जब तक हमारे पास सरप्लसेस नहीं आ जाते। दैट्स वन। सेकेंड, OMSS ने पहले भी टेम करने की हेल्प करी है। इस बार भी अगर हम बैलेंस शीट देखें तो 10 मिलियन टन नहीं तो 8 तो दिख ही रहा है इनके पास है। गिवन अगर 7.5 का हम क्लोजिंग स्टॉक अज्यूम करके चले कि इज एक्सेप्टेबल, सो उसके पास 8 है। एंड देयर इज, एज आई वुड कॉन्कर विद सूद सर, गवर्नमेंट विल डू एवरीथिंग बिकॉज मदर ऑफ एवरी metric that they track is inflation. Inflation is still 5% over and above 13% from last year. So वो inflation track कर रहे हैं, we can sense it from the policies. वो कह रहे हैं कमांडो खड़े कर दिए गए थे गोडाउन के वो बाद, तो अति हो गया। लेकिन फार्मर के घर के सामने तो खड़े नहीं कर सकते ना। अब ये कह रहे हैं 20% होल्डिंग फार्मर की है, तो गरिमा जी आप बताइए फार्मर को किस प्राइस पर गेहूँ बेच देना चाहिए, निकाल देना चाहिए? देखिए, किसान सबसे स्मार्ट है, तो हमें उससे एक शिक्षा लेनी है, उसको बताना नहीं है कि किस भाव पे निकालना है। बट मेरा इसमें
मेरा ये सजेशन इसमें ये है कि देखिए किसान का डिसीजन आप चेंज नहीं कर सकते, और ऐसा गेहूं में नहीं है, सिर्फ गेहूं में नहीं है। हमने ये ट्रेंड मक्के में देखा है, कॉटन में देखा है, मतलब कॉटन शायद जल जाए लेकिन वो बाहर नहीं आएगी, विच इज़ वेरी गुड एज अ साइन फॉर द कंट्री कि फार्मर होल्डिंग बढ़ रही है एंड वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट। नहीं, कई बार इसका एडवर्स इम्पैक्ट भी होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जीरे का। जीरा एक क्रॉप है, 20,000 के आसपास ट्रेड हो रहा था लास्ट ईयर, वो बढ़ के चला गया 65,000 तक। बहुत सारे फार्मर ने होल्ड करके रखा, अब वो प्राइस गिर के आ गया 30,000 के नीचे। तो ये तो हमारे ट्रेड की प्रथा है, जब भाव बढ़ते हैं उतनी स्टॉकिंग बढ़ती जाती है, और जब ये रिवर्स होता है तब इतना स्टॉक निकल के बाहर आता है कि जो हमें पता नहीं होता कहाँ से आ रहा है। पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि आप बहुत बात है कि भाई इंपोर्ट को लेकर इतना प्रेशर किया जा रहा है, दीपक जी इतना दबाव बना रहे हैं, रोज मिनिस्ट्री जाते हैं। अब बाई चांस अगर मतलब इंपोर्ट ओपन अप हो गया है ना, और जो बात ये कह रहे हैं कि भाई सप्लाई की दिक्कत है नहीं, तो ऐसा ना हो कि प्राइस गिरने लगे फिर फार्मर को कम भाव पर बेचना। देखिए इम्पोर्ट का जो एक प्रेशर नहीं बोलूँगी मैं, एक डिसीजन है, वो अगले 6 महीने देखते हुए नहीं है, वो अगले कई साल देखते हुए है। जैसा कि अभी यहाँ पर हमारे साथ स्टेज पे बताया गया कि हमारे सेंसस के हिसाब से 7.5 भी कम है फॉर द कंट्री टू टेक केयर ऑफ इट्स फूड सिक्योरिटी। सो हमें 1 साल के लिए प्रिपेयर नहीं होना है, हमें अगले 5 साल या 10 साल के लिए प्रिपेयर होना है। नहीं, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी जो है वो फोर्स करेगी गवर्नमेंट को कि कम से कम जो थ्रेट ऑफ इम्पोर्ट है, if not physical but the threat of import will have to be shown loud and clear। इंटेंट दिखानी पड़ेगी, थोड़ा बहुत माल लाके भी चाहे थोड़ा सा ले आए, अच्छा, लेकिन दिखाना पड़ेगा क्योंकि लाना है, ऐसा तो नहीं वो ये देखिए जो माल दबा है ना अंदर उसको बाहर लाना पड़ेगा। अच्छा, दबाने so, दो चीजें हैं, या तो माल अंदर दबा है या नहीं दबा है। नहीं, आपके हिसाब से माल कहाँ दबा है, फार्मर के पास या स्टॉकिस्ट के पास? देखिए वो जिसके पास भी होना, ये गलत फोरम है इस बात का जवाब देने नहीं, गलत नहीं। अरे सर, मतलब माल जब दबा होना, देखिए फार्मर माल होल्ड कर रहा है तो सप्लाई चेन में हर स्टेज पे माल दबा हुआ है, हर स्टेज में माल दबा हुआ है, वो उसमें ऑल ऑफ अस नो दैट, राइट। सो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल इस समय ऑलरेडी चुनाव अच्छी तरह जीत के नहीं आए हैं लोग बाग। जोशी सर, फाइनल टेक से टाइम कम है, बस 2 मिनट का टाइम। आप बताइए फाइनल टेक एकदम स्ट्रांगली, मैं चाहता हूँ आपका स्ट्रांग व्यू है कि इंपोर्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लीजिए साहब, मैं तो कुछ और सोच रहा था, आपने तो गुगली मार दी। देखिए आपके प्रश्न से पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, 2 मिनट है ना मेरे पास। देखिए कृषि और कृषि विज्ञान में जादू नहीं होता है। देखिए जादू, ये कृषि जो है ना, एग्रीकल्चर जादू का खिलौना नहीं है। इससे वो उम्मीद मत रखिए कि साहब झटके से ये हो जाएगा, वो तूफान मच जाएगा, आज से चढ़ जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। ईल्ड बढ़ाने की बात है, ईल्ड गैप की बात, पूरी दुनिया को देख लीजिए, ईल्ड गैप तो है ही है, हमेशा रहेगा, कैसे हटेगा। किसान की हालत तो देखिए कितना है औसत, उसका 90% किसानों के पास कितनी ज़मीन है, क्या रिस्क ले सकता है? वो होगा नहीं। आप किताबें लिखते रहिए, सब लिखा हुआ है। सर इंपोर्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इंपोर्ट इससे जुड़ा हुआ है, इंपोर्ट इससे जुड़ा हुआ है। इंपोर्ट होगा तो किसान पे क्या नुकसान होगा? भाई सरकार को निर्णय लेना है मेरे हिसाब से। नहीं, आपके हिसाब से क्या? मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से किसी भी, हम अपने हिसाब से बताएंगे, आपके हिसाब से नहीं बता सकते। बिल्कुल अपने हिसाब से। हाँ, देखिए पूरे विश्व का अध्ययन करके ये बात स्पष्ट हुई है, सभी फसलों में, चाहे वो फल हो चाहे मसाला हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट साथ साथ चलता है, साथ साथ चलता है। उसके लिए एक नीति बनानी पड़ेगी 30 साल की, 50 साल की, तब हमसे लोग गेहूं लेंगे। क्यों अमेरिका के पास क्या गेहूं कम है? क्यों डुरम वीट खरीदता है? यूरोप क्यों डुरम वीट लेता है मैक्सिको से? इसका जवाब नहीं मिला। इंपोर्ट गेहूं का सरकार को ओपन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक लाइन में। वो जवाब आपका जो है, ये जो आपका शॉर्टकट जवाब नहीं, शॉर्टकट नहीं। मैं कह रहा हूँ एक नीति बनाइए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट साथ साथ चले, जिससे देश की तरक्की हो, किसानों की तरक्की, वो नीति बन जाएगी। अब इंपोर्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इस समय तो भाई आप मेरे ख्याल में आप भारत सरकार से पूछ लें। मैं तो नहीं, आपके हिसाब से, आप एक्सपर्ट हैं, आपके हिसाब नहीं, मेरे हिसाब से अभी नहीं, अभी करना जल्दबाजी होगी। थोड़ा रुक जाइए, यही जल्दबाजी, अभी थोड़ा रुक जाइए। मिस्टर झा, थैंक यू। इस समय हमें प्राइस को भी मद्देनजर रखना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए। आप अगर मोहरत के तौर पे हम गेहूं नहीं ला सकते, क्योंकि आप वर्ल्ड को एक गलत पिक्चर नहीं दे सकते। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड का वीट कहाँ पर है, और आप हर साल MSP बढ़ा के अपने गेहूं का लेवल कहाँ पर ला रहे हैं। तो मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क जो समझ सके वो ये, इसका सीधा जवाब नहीं है, बट ये है that it is not the man that has domesticated wheat,
It is wheat that has domesticated the men. चलिए ठीक है, ये डिबेट बहुत ही लंबी चलेगी, इस पर आम राय बनना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हाँ, इस पैनल के जरिए एक बात सामने आई है कि गेहूं कितनी हॉट कमोडिटी है, इसके ऊपर कितनी चर्चा हो सकती है, ये बात, और आप लोगों ने जिस पेशेंस के साथ सुना है इस पूरे पैनल को, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी पैनलिस्ट का भी बहुत डिटेल में व्हीट के ऊपर इंसाइट्स यहाँ पर शेयर करने के लिए। थैंक यू मिस्टर मृत्युंजय कुमार झा, एंड द टॉपिक वाज व्हीट फॉर पीस, लेकिन बहुत गर्मा गर्मी हो गया इधर। But I thank all of you. May I invite first Mr. B.V. Patnaik to please come on the stage, because you are going to honor both the ladies. You're going to honor Miss Shweta Saini. Madam, may I invite you in the front to please come in the front. Please come in the front. You get a good picture. We first honor the ladies. Thank you. Thank you. Thank you, Patnaik ji. I'll call you again. Ajay ji. Mr. Ajay, sir, you have to honor the other lady, Miss Garima Jain, please. May I invite you, Miss Garima Jain? First we'll honor the ladies, then we'll get a group picture, and here we go. Big round of applause for her wonderful contribution to the forum. Ajay ji, continue staying on stage. Mr. Goyal, continue staying on stage. May I invite now our wonderful moderator, commodity editor, Z Business, Mr. Mrityunjay Kumar Jha, who did such a fabulous job, as usual. Big round of applause. Jha Sahab, well done. Thank you. May I invite Mr. Sanjay Puri on the stage, please. Sanjay ji, please come, and you will honor Professor Arun K. Joshi, please. Thank you very much. Continue on the stage, Mr. Puri, because I'll also request you to honor Mr. Jatin Singh, please. Mr. Jatin Singh. Thank you. Big round of applause for Mr. Jatin Singh, Chairman, SkyMet Weather Services Private Limited. Thank you for your contribution to the forum, sir. Thank you, Mr. Puri. Thank you very much. May I invite Mr. G.K. Sood, please, on the stage. Sood Sahab. Sood Sahab, you will honor Mr. Khalid Khan, please. Khalid Sahab. Big round of applause for Mr. Khan. Thank you, sir, for your wonderful contribution. Sood Sahab, you continue being on stage because you will now honor Mr. Deepak Parikh, who almost created a riot. I thought either he will get beaten up or the other guys will get beaten. Wonderful, Deepak. Bhai, what a pleasure to always have you on all forums. Thank you so much for your presence. Mr. B.V. Patnaik, I'll invite you again on the stage, sir. Mr. B.V. Patnaik. And you will honor Mr. Raju Kapoor. Thank you. Mr. Jatin Singh, you got yours? Mr. Jatin Singh, you got yours? Okay, okay. And I'm here. Here. So, everybody has got theirs? May I invite you all in the front for a group picture with Ajay ji. Ajay ji, please join in the picture. Thank you. आइए group picture के लिए. If possible with your mementos, so you can show off your mementos. A very pretty, very beautiful. Jha Sahab, आपका memento कहाँ है? हाँ, तो display कीजिए.
Show of strength. Guys are really strong, both in the arms and in the head. Full group. There is a photo booth. There is a photo booth outside. Uska print bhi milega, sir. Print bhi milega, soft copy bhi milega. Please, bahar jaake. I've got a hair and makeup artist. He will do your hair and makeup and then take a picture. Big round of applause for our esteemed panel and moderator. Thank you, ladies and gentlemen. Let me remind you, we have a photo booth outside. You can take a picture. You can get a printout, take a soft copy, and your spouse will love you again if you're looking good. Lunch time now. Thank you. We'll return exactly at 2:30 for a final session. Thank you.